Assalamu alaikum, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, and a very good morning to all of you. This is Haroon Ahmed Jan, Regional Head of Member Affairs. I welcome you all to this webinar on Sales Tax Act 1990, the Session 1. As you can see from the notice put up on the screen, that our presenter, Mr. Yawar Muhammad, is unfortunately not feeling well today. But despite that, we have agreed to not cancel today's session. We have agreed to reduce its timing, and for that I am thankful to Yawar that despite his illness, he is here in the office early morning on a Saturday. Early जो है वो quote unquote में है, so early morning on a Saturday and delivering the session. Very thankful, Yawar. Just have a few announcements to make. आज का session will be for 2 hours instead of 4 hours. So we will start at 10 o'clock and we will finish today's session at 12 o'clock. So all of you please note, today's session is not going to be 4 hours. It will be for 2 hours only. The following sessions, the subsequent sessions on Sales Tax Act, which means Session 2 and Session 3, will take place as agreed. However, there will now be a 4th session once again of 2 hours, and the schedule of which we will communicate to all of you in a few days. So once again, I will repeat this announcement. For Sales Tax Act, due to the reduced timing of today's session, we are now going to have 4 sessions instead of 3. The first session will be 2 hours. The second session will be for 4 hours. The third session will also be 4 hours, inshallah. And the 4th session will be of 2 hours, inshallah, once again. And the date and timing of the 4th session will also be communicated to all the members in the next few days. I have a few other announcements to make, so I'll be very, very quick. I don't want to take too much of your time. We have noticed that these sessions, these webinars, they have, by the grace of God, become very popular, and a lot of students, affiliates, and members attend these sessions. We are aware of the fact that at times some suspended ACCA members or suspended ACCA affiliates or students also, because of sharing of emails, they register themselves for these sessions. However, since we do not want to deprive anyone in the country or anyone in the world, as per ACCA's philosophy, we don't want to deprive anyone of knowledge, we are deliberately not suspending them or dropping them out of these sessions. However, I want to reiterate that only the active members or the active affiliates or the active students who pay their subscriptions are allowed to attend these sessions, for the very simple reason that these are the stakeholders who pay us a subscription fee that they annually pay. It is only possible for ACCA to hold these events because of the revenue through these subscription fees. Therefore, very logically, those individuals who pay their subscriptions have the first right to attend these sessions. So that is what our philosophy on active members and right to attend webinars is. However, we are keeping a liberal view of this.
and therefore we are letting other stakeholders who are currently suspended, we are letting them attend. It will be ideal that all those who are suspended right now may consider to get reinstated to continue to enjoy the benefits of ACCA membership, of which attending webinars, etc., is a very big benefit. It keeps you updated at all the times of the recent changes in any particular topic or domain in the field of accountancy. So I think that was an announcement that I had to make. One further announcement, and that is that as far as the certificates are concerned, since the CPD requirement applies to active members only, we reserve the right to give out certificates only to those individuals who are currently active. So yesterday we made a decision that fine, we are not going to stop people from attending webinars. However, we will only issue certificates to the active ACCA stakeholders. The inactive ones will not be able to receive their certificates. I just want your feedback. If you can, in the question answer dialog box, if you agree with the decision taken by ACCA, if you agree, please type agreed in the question answer box. If you disagree, you have the right to say disagreed. Thank you very much. Thank you. I think I should share this screen for others to view. Most of the people are saying agreed. There is one individual, Amir, who has said disagree. I'll find out why. Amir, if you can elaborate, why do you disagree? Do you think we should not even allow them to attend? If that is the case, let us know, what your opinion is. But majority, however, are saying that they agree with ACCA's policy. In any case, I think that's an indication that most of the members agree to our stance. With this, I will hand over to Yavar. Once again, those people who have just joined, there's a quick announcement. Today's session is going to be for 2 hours only instead of 4 hours because Muhammad Yavar is not feeling well. We have decided that we are instead of having 3 sessions of 4 hours each on Sales Tax Act, we are now going to have 4 sessions. So the first one is going to be 2 hours. Session 2 is going to be for 4 hours, inshallah. Session 3 will also be 4 hours, inshallah. And we are now going to have another 4th session, which is going to be 2 hours. So that was an important announcement that I wanted to share with you. I now hand over to Yavar to continue with the session. Thank you very much for your patiently listening. Thank you so much, sir. Assalamu alaikum, everybody. ओके आज थोड़ी सी तबीयत मेरी जो है वो थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से ख़राब होगी, जिसकी वजह से हमें माजरत चाहता हूँ कि मैं 4 आवर्स के लिए शायद ना बोल सकूँ, तो हमें ये 2 आवर्स में करना पड़ा. ओके, कंटिन्यू टुवर्ड सेल्स टैक्स एक्ट 1990. तो स्टार्ट करने से पहले ये क्वेश्चन जो है आया मुझे कि जी ये सेल्स टैक्स क्या है, क्या ये वैल्यू एडेड टैक्स की तरह ही होता है उसी जिस तरह यूके में पाया जाता है. तो थोड़ी सी इसकी हम हिस्ट्री देख लें कि 1952 में जब फर्स्ट टाइम सेल्स टैक्स एक्ट 1952 इम्प्लीमेंट किया गया, तो उस टाइम जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि जी सिर्फ होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर जो है वो सेल्स टैक्स हम लोगों ने लेवी करना है, और वो भी तब जब वो अनलाइसेंस्ड ट्रेडर्स को
सेल करें, जो आज की लैंग्वेज में कहूँगा कि अनरजिस्टर्ड ट्रेडर्स को वो सेल करें। तो उस टाइम हर स्टेज के ऊपर सेल्स टैक्स लेवी नहीं किया जाता था। फिर टाइम के साथ साथ इम्पोर्टर्स के ऊपर भी सेल्स टैक्स लेवी होना शुरू हो गया। लेकिन लेट एटीज में जो है इस चीज को फिर चेंज किया गया जब न्यू एक्ट आया, सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के नाम से। तो वो बिल्कुल जो है वो वैल्यू एडिशन टैक्स की तरह ही था, और बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि हमारे कंट्री में जो सेल्स टैक्स सिस्टम है इट्स वैल्यू एडेड टैक्स और मल्टी स्टेज टैक्स, ठीक है, इट्स सेम जैसे कि दूसरे कंट्रीज में होता है वैल्यू एडेड टैक्स, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी वैल्यू एडेड टैक्स है। वैल्यू एडिशन टैक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो यही है कि हर स्टेज पे वैल्यू ऐड हो रही है, और जब वैल्यू ऐड हो रही है तो सेल्स टैक्स जो है वो इंक्रीज होता रहेगा, और अल्टीमेटली वो सेल्स टैक्स गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना है जो कंज्यूमर जो है जो रिटेल प्राइस पे कर रहा है, उस रिटेल प्राइस के ऊपर जो सेल्स टैक्स चार्ज होगा। तो जो क्वेश्चन था कि जी ये क्या वैल्यू एडेड टैक्स है, तो बिल्कुल ये वैल्यू एडेड टैक्स ही है। इसको वैल्यू एडेड टैक्स, हमारे कंट्री में सेल्स टैक्स सिस्टम वैल्यू एडिशन टैक्स का सिस्टम ही है। ओके, जो सेल्स टैक्स एक्ट हमने देखना है वो जो है हमारे पास सेल्स टैक्स एक्ट 1990 है, जिसको हमने जो है लेकर चलना है, ठीक है, जिसको हमने देखना है। जिस तरह मैंने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को एक्सप्लेन किया था, बिल्कुल इसी तरह आप इसके कंटेंट्स अगर देखेंगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सेक्शंस है, इसमें सेक्शंस ज्यादा नहीं है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की तरह। देन हमारे पास रूल्स आ जाते हैं। सेल्स टैक्स एक मेन सब्सटैंटिव लॉ है जिसको सेल्स टैक्स एक्ट कहते हैं। देन सेल्स टैक्स रूल्स 2006 आ जाते हैं। रूल्स का मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन किया था कि उसके अंदर किसी काम को करने का तरीका, प्रोसीजर जो है वो एक्सप्लेन किया जाता है। और जब मैंने एक खास बात आप लोगों को तब भी बताई थी कि जब भी हमें लॉ कहे कि एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, तो इसका मतलब है कि वो हमें रेफर कर रहा होता है रूल्स की तरफ, हमें जो है उससे रेलेवेंट रूल देखना पड़ता है। रूल्स जो है वो हमें दो तरह के नजर आएंगे सेल्स टैक्स एक्ट में। एक सेल्स टैक्स रूल्स 2006 है, और एक स्पेशल प्रोसीजर रूल्स 2007 है जो कि स्पेशल इंडस्ट्रीज के ऊपर अप्लाई होते हैं। और इसके बाद जो हमारे पास फोर्थ चीज है देखने वाली, वो है स्पेशल प्रोसीजर विद होल्डिंग रूल्स। विद होल्डिंग टैक्सेस जो है वो बहुत कॉमन है, पहले इनकम टैक्स तक थे, फिर उसको सेल्स टैक्स में भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि जब भी आप परचेजेस करेंगे, आपने पेमेंट करनी है, तो आपने सेल्स टैक्स को कैसे विदहेल्ड करना है। ऑल दो वो रूल जो है वो करंट फाइनेंस एक्ट में जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया गया, उसका तो जब भी टर्न आएगा हम उसको तभी देखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं सेल्स टैक्स एक्ट 1990 पे। तो जिस तरह मैंने इनकम टैक्स के स्टार्ट में कहा था कि इट अप्लाइज टू होल ऑफ पाकिस्तान, इस तरह ये लॉ भी पूरे पाकिस्तान पे अप्लाई होगा। लेकिन आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो सेल्स टैक्स हमारा कोई भी एक्ट होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस होता है। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन कह देंगे कोई लॉ किसी जगह पर नहीं अप्लाई होना, तो इसका मतलब है कि अगर उस लॉ के अंदर भी लिखा हो, उसका मेन बॉडी में ये लिखा हो कि जी इट अप्लाइज टू होल ऑफ पाकिस्तान, अगर कॉन्स्टिट्यूशन मना कर रहा है तो वो फुल पाकिस्तान पे अप्लाई नहीं होता। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, आर्टिकल 247 में, 246 एंड 47 में ये बात क्लियरली मेंशन है कि फाटा और पाटा पे कोई लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो अगर इस लॉ के अंदर सेल्स टैक्स एक्ट के अंदर ये बात लिखी भी गई हो, तब भी जो है ये फाटा और पाटा के एरिया में अप्लाई नहीं होता। हम स्टार्ट लेते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो हमें पता होनी चाहिए जब हम गो थ्रू करें पूरे लॉ से। सबसे पहले हमारा जो स्टार्ट है वो है एक्टिव टैक्स पेयर। इनकम टैक्स में हमने एक्टिव टैक्स पेयर देख लिया था, रिटर्न के हवाले से था। यहाँ पर एक्टिव टैक्स पेयर को जरा इलैबोरेटली मजीद एक्सप्लेन किया गया है। एक्टिव टैक्स पेयर क्या है? मींस अ रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। पहली बात तो है कि ये रजिस्टर्ड पर्सन के लिए एक्टिव टैक्स पेयर की डेफिनेशन इन लोगों ने यूज की है। रजिस्टर्ड पर्सन वो होता है जो अपने आप को सेल्स टैक्स एक्ट में रजिस्टर कर ले, जिसके पास STRN मौजूद हो, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हुआ हो जिसको। वो प्रोसीजर क्या है रजिस्ट्रेशन का वो भी हम देखेंगे रजिस्ट्रेशन के सेक्शन में। एक्टिव टैक्स पेयर मींस अ रजिस्टर्ड पर्सन हु डज नॉट फॉल इन एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, नेमली जो इन कैटेगरीज में ना हो, who is blacklisted or whose registration is suspended or is blocked। अगर वो blacklist है, उसकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड है या ब्लॉक्ड है, तो इसका मतलब है कि वो फिर एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर वो एक्टिव टैक्स पेयर होगा। फेल्स टू फाइल द रिटर्न अंडर सेक्शन 26 बाय द ड्यू डेट फॉर 2 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड्स। अच्छा, एक चीज यहाँ पर मैं पीरियड के हवाले से बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने इनकम टैक्स में देखा कि हमारा जो टैक्स पीरियड है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है नॉर्मल टैक्स ईयर, और एंड हो जाता है 30 जून को। 1 जुलाई से स्टार्ट होगा, 30 जून में नॉर्मल टैक्स ईयर एंड हो जाता है। लेकिन जो हमारा सेल्स टैक्स है उसमें जो टैक्स पीरियड है वो मंथली
हिसाब से चलता है। अगर जनवरी है तो 1 जन से स्टार्ट होगा तो 1 जन पे एंड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास सेल्स टैक्स में 12 पीरियड्स होते हैं फुल ईयर के अंदर, तो हमने पीरियड वाइज देखना है। और यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि अगर 2 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड्स की आपने रिटर्न फाइल नहीं की तो आप जो है सेल्स टैक्स के लिहाज से इनएक्टिव हो जाएंगे, एक्टिव टैक्स पेयर नहीं रहेंगे। फिर कहते हैं हु फेल्स टू फाइल एन इनकम टैक्स रिटर्न अंडर सेक्शन 114 और स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 115 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस बाय द ड्यू डेट। अगर कोई इनकम टैक्स रिटर्न जो है इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं करता, या स्टेटमेंट जो है वो 115 की स्टेटमेंट, फाइनल टैक्स की स्टेटमेंट टाइम पर फाइल नहीं कर रहा, ठीक है, ड्यू डेट पर, तो वो सेल्स टैक्स में भी इनएक्टिव कर दिया जाएगा। तो अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमने तो सेल्स टैक्स रिटर्न वक्त पे फाइल की है, क्लाइंट्स इस तरह कहते हैं, तो हम फिर भी इनएक्टिव क्यों आ रहे हैं? तो उसका रीजन ये होता है कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल नहीं की हुई अगर, तो तभी भी आप जो है वो नॉन एक्टिव ही रहेंगे। फिर कहते हैं who fails to file 2 consecutive monthly or an annual withholding tax statement under section 165। हमने withholding statements इनकम टैक्स में पढ़ी थी। अगर इनकम टैक्स की withholding statement कोई फाइल नहीं कर रहा, ठीक है, और उन्होंने 2 consecutive monthly statement फाइल नहीं की या एनुअल स्टेटमेंट फाइल नहीं की, एनुअल स्टेटमेंट सिर्फ सैलरी की जाती है, अदर हेड्स की नहीं जाती, तो इसका मतलब है कि वो सेल्स टैक्स में भी नॉन एक्टिव टैक्स पेयर रहेगा। तो ये एक्टिव टैक्स पेयर की डेफिनेशन जो है वो इस हवाले से, सेल्स टैक्स के हवाले से हमारे सामने आती है। ओके, मोहम्मद वासिफ साहब पूछ रहे हैं कि जी मंथली लाजमी है या क्वार्टरली या एनुअली पे जा सकते हैं? नहीं, आपने जो है वो मंथली ही फाइल करनी है हर हालत में। सेल्स टैक्स में कोई क्वार्टर का कॉन्सेप्ट अब नहीं है, ठीक है, किसी वक्त में होता था कुछ खास जो है वो बिजनेसेस के लिए। अब आपने हर हालत में मंथली ही अपनी रिटर्न फाइल करनी है, मंथली स्टेटमेंट्स फाइल करनी है। राशिद हनीफ साहब पूछ रहे हैं 2 पीरियड्स मींस 2 मंथ्स? यस, 2 मंथ्स, जनवरी एंड फरवरी 2 मंथ्स की आपने फाइल अगर नहीं की तो आप जो है मार्च में इनएक्टिव हो जाएंगे। तो 2 मंथ्स, 2 पीरियड्स का मतलब है 2 मंथ्स। ओके, फिर हमारे पास आ जाती है कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री का क्या मतलब है? कॉटेज इंडस्ट्री को डिफाइन क्यों किया गया है? कॉटेज इंडस्ट्री में अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर, पहली बात ये मैन्युफैक्चरर को कॉटेज इंडस्ट्री में डाला गया, अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर कॉटेज इंडस्ट्री में आता है तो उसके लिए सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन लाजमी नहीं होती, वो सेल्स टैक्स से एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो इसी लिहाज से जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री को एक्सप्लेन किया गया कि इसका मतलब है मींस मैन्युफैक्चरर whose annual turnover from taxable supplies made in any tax period during the last 12 months ending any tax period does not exceed 10 million rupees। तो पहली उन्होंने क्या बात की कि प्रीवियस, यानी कि अगर आप आज की डेट में हैं तो आप इससे प्रीवियस 12 टैक्स पीरियड्स पे चले जाएं, ठीक है। आपने इनकम टैक्स के हवाले से कोई ईयर नहीं देखना, आपने टैक्स पीरियड्स को जो है वो मंथली कंसिडर करना है। आपने जो है वो 12 टैक्स पीरियड्स देखने हैं। अगर उन 12 टैक्स पीरियड्स में आपकी सेल्स 10 मिलियन से एक्सीड नहीं की तो इसका मतलब है आप कॉटेज इंडस्ट्री में फॉल कर रहे हैं। अगली कंडीशन साथ ही उन्होंने बता दी, और whose annual utility bills during the last 12 months ending any tax period do not exceed 800,000 rupees। अगर उनका जो है पिछले 12 मंथ्स के अंदर जो यूटिलिटी बिल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, टेलीफोन, सारे मिला के वो 800,000 से एक्सीड नहीं करते और ये दोनों कंडीशंस एट अ टाइम सेटिस्फाई हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि वो मैन्युफैक्चरर कॉटेज इंडस्ट्री में फॉल करेगा और वो सेल्स टैक्स से एग्जेम्प्ट होगा। उसने सेल करते हुए सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करना। लेकिन अगर एक कंडीशन भी जो है वो मीट नहीं हो रही है तो फिर उस टैक्स पेयर ने जो है वो नॉर्मली अपने आप को ट्रीट करना है, अपने आप को रजिस्टर करवाना है और सेल्स टैक्स चार्ज करना है। तो ये हमारे पास होगी कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन। ओके, फिर हम आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को लॉ कैसे डिफाइन करता है। मींस अ पर्सन अपॉइंटेड बाय अ मैन्युफैक्चरर, importer or any other person for a specified area to purchase goods from him for further supply, and includes a person who in addition to being a distributor is also engaged in supply of goods as a wholesaler or retailer। तो डिस्ट्रीब्यूटर की डेफिनेशन हमें बिल्कुल क्लियर है कि मैन्युफैक्चरर अपॉइंट करता है या इंपोर्टर अपॉइंट करता है कि वो गुड्स उससे ले, ठीक है, और फर्दर फिर आगे सप्लाई करे। तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूटर की डेफिनेशन है। फिर हम आ जाते हैं इनपुट टैक्स के ऊपर। ये जो है इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स को समझना जो है वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और याद रखना इनपुट टैक्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन के लिए अप्लाई होता है। अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल, अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर जो है वो इनपुट टैक्स या आउटपुट टैक्स का कोई बेनिफिट अवेल नहीं कर सकता। जब वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर ही ना हो तो उसको सेल्स टैक्स एक्ट कोई बेनिफिट भी नहीं अवेल करने देगा। तो इसलिए जब हम इनपुट टैक्स की डेफिनेशन पे आते हैं तो स्टार्ट ही लेता है कि जी इन रिलेशन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। इसका मतलब है कि जी ये सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन के लिए ये कॉन्सेप्ट है। इसको ये कैसे डिफाइन कर रहे हैं? टैक्स लेविड अंडर दिस एक्ट ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स टू द पर्सन।
कि हम लेट्स से आई एम अ सप्लायर, ठीक है, मैंने सेल्स टैक्स जो चार्ज किया, तो जो भी मुझसे बायर परचेज करेगा उस बायर के लिए मेरा चार्ज किया हुआ सेल्स टैक्स इनपुट टैक्स कहलाएगा। ठीक है, जो सेल्स टैक्स मैं चार्ज कर रहा हूँ मेरे लिए वो इनपुट टैक्स नहीं है, जो मुझसे परचेज कर रहा है बायर, अगर वो सेल्स टैक्स पे कर रहा है और वो रजिस्टर्ड है एक्ट में, तो उसके लिए वही टैक्स, चार्ज्ड टैक्स जो वो पे कर रहा है मुझे, वो इनपुट टैक्स कहलाएगा। तो क्या कहता है, टैक्स लेविड अंडर दिस एक्ट ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स टू द पर्सन, तो जिस पर्सन को सप्लाई किया जा रहा है, ठीक हो गया, यानी कि बायर, उसके लिए वो इनपुट टैक्स होगा। टैक्स लेविड अंडर दिस एक्ट ऑन द इंपोर्ट ऑफ गुड्स बाय द पर्सन, अगर कोई भी इंपोर्ट करता है और इंपोर्ट स्टेज के ऊपर कस्टम अथॉरिटीज उससे सेल्स टैक्स जो है वो कलेक्ट कर लेती है, तो वो सेल्स टैक्स भी जो है इंपोर्टर के लिए या मैन्युफैक्चरर के लिए जो भी इंपोर्ट कर रहा है और रजिस्टर्ड है सेल्स टैक्स एक्ट में, तो उसके लिए वो टैक्स इनपुट टैक्स कहलाएगा। इन रिलेशन टू गुड्स और सर्विसेज एक्वायर्ड बाय अ पर्सन, tax levied under FE Federal Excise Act in sales tax mode as a duty of excise on the manufacture or production of the goods or the rendering or providing of service। अच्छा, इस क्लॉज का क्या मतलब है, कुछ कभी कभी ऐसा होता है कुछ आइटम जो है फेडरल एक्साइज एक्ट अगर हम 2005 को रीड करें तो वहां पर ये चीज सामने आती है, कुछ सेक्शंस के अंदर ये लिखा होता है कि जी कुछ आइटम्स ऐसे हैं कि इसके ऊपर अगर एफईडी लग जाएगा तो वो सेल्स टैक्स मोड में लगेगा, यानी कि एफईडी लगे या सेल्स टैक्स लगे वो दोनों सिमिलर होगा। अगर एफईडी लग गया तो दोबारा से सेल्स टैक्स नहीं चार्ज करना, वो सेल्स टैक्स मोड का एफईडी होता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर आप लोगों ने एफईडी चार्ज किया और वो सेल्स टैक्स मोड वाला एफईडी है किसी आइटम के ऊपर, तो वो भी जो है बायर के लिए इनपुट टैक्स होगा, उसने 2 दफा वो टैक्स पे नहीं करना, वन टाइम पे करेगा। लेकिन डिपेंड करता है कि क्या वो लॉ उसको सेल्स टैक्स मोड वाला एफईडी कंसीडर कर रहा है कि नहीं। फिर आ जाता है प्रोविंशियल सेल्स टैक्स लेविड ऑन सर्विसेज रेंडर्ड और प्रोवाइडेड टू द पर्सन, अगर मैं कोई सर्विसेज परचेज कर रहा हूं तो मुझ पर जितना भी सेल्स टैक्स चार्ज हो रहा है और मैं सेल्स टैक्स पे कर रहा हूं सर्विसेज के ऊपर, वो भी सेल्स टैक्स एक्ट की नजर में इनपुट टैक्स ही कहलाएगा। अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चंस देख रहा हूँ, तो इसमें एक क्वेश्चन जो है सैयद नाजिम अब्बास साहब ने पूछा है कि जी पीआरए में मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, तो इसमें अगर वो प्रोविंशियल एक्ट की जो क्वेश्चंस है, जब हम प्रोविंशियल एक्ट की तरफ आएंगे, सेल्स टैक्स एक्ट के बाद हमने प्रोविंशियल एक्ट्स को भी देखना है इंडिविजुअली हर प्रोविंस के, तो अगर हम उस उधर जाएंगे तो आई थिंक ये क्वेश्चंस अगर हम वहां देख लें तो ये बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो उन चीजों को मर्ज करके जब तक हम ये बेसिक सेल्स टैक्स अपना गुड्स वाला फेडरल एक्ट अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो वहां का आंसर देना जो है आई डोंट थिंक सो कि वो चीजें उस तरह से समझ आएगी। और अगर आप जो है प्रोविंशियल लेवल पे जो है रजिस्टर्ड है, मैं फिर भी नाजिम साहब जो है फिर भी कह रहे हैं कि मैं एफबीआर स्टफ पूछ रहा हूँ, तो मैं आपको बताता जाऊँ कि अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और आप जो है प्रोविंशियल सब्जेक्ट के अंदर आते हैं, प्रोविंशियल सेल्स टैक्स के अंदर आते हैं, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अपने आप को एफबीआर में भी रजिस्टर करवाएं। ठीक होगी, एफबीआर में रजिस्टर करवाने की आपको सेल्स टैक्स में कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कोई टैक्सेबल गुड सेल नहीं कर रहे। अगर आप टैक्सेबल गुड सेल नहीं कर रहे तो फिर रजिस्ट्रेशन की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर जो है आप इंपोर्टर हैं और आपको जो है वो सेल्स टैक्स एक्ट में रजिस्टर करवा लिया गया है, तो फिर आप अपनी निल रिटर्न्स लाजमी फाइल करेंगे एफबीआर में, क्योंकि आपने बीइंग एन इंपोर्टर जो है अपने आप को रजिस्टर करवाया, तो निल रिटर्न्स आपको फाइल करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और कोई ऐसे गुड सेल नहीं कर रहे हैं जो फेडरल सब्जेक्ट है, तो आपको एफबीआर में रजिस्टर होने की कोई जरूरत नहीं। ओके, ये इनपुट टैक्स है। फिर लास्ट में कहते हैं लेविड under the Sales Tax Act 1990 as adopted in the state of Azad Jammu and Kashmir on the supply of goods received by the person। अगेन क्योंकि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर ने जो है हमारा सेल्स टैक्स एक्ट अडॉप्ट किया हुआ है, तो इसलिए बिल्कुल इन्होंने इनपुट टैक्स को भी वहां पर भी अप्लाई कर दिया कि जी अगर कोई भी गुड जो है वो पर्सन रिसीव कर रहा है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में जो अडॉप्ट किए हुए हैं, तो अगर उन्होंने सेल्स टैक्स कोई पे किया है तो वो सेल्स टैक्स जो है वो इनपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स को अगर मैं यहाँ पर जो है वो ब्रीफली बताऊं तो इनपुट टैक्स वो होता है वो सेल्स टैक्स जो बायर या परचेजर पे करता है सप्लायर को, उस सेल्स टैक्स को हम इनपुट टैक्स कहेंगे। तो इसका मतलब है कि ऑन परचेज जितना भी सेल्स टैक्स होता है, चाहे वो सर्विसेज का हो चाहे वो गुड्स का हो, वो सारा का सारा इनपुट टैक्स कहलाता है। ओके, फिर हम आ जाते हैं मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन पे कि मैन्युफैक्चर क्या होता है। एनी प्रोसेस इन व्हिच व्हाट इज मैन्युफैक्चर, एनी प्रोसेस इन व्हिच एन आर्टिकल सिंगली और इन कॉम्बिनेशन विद अदर आर्टिकल्स
materials, components is either converted into another distinct article or product, or is so changed, transformed, or reshaped that it becomes capable of being put to use differently or distinctly and includes any process incidental or ancillary to the completion of a manufactured product. इसका मतलब है कि आप किसी आइटम को इस अंदाज में चेंज कर दें कि उसके बाद जो है उसकी शेप जो है वो बिल्कुल डिफरेंटली यूज करने के काबिल हो जाए. फॉर एग्जांपल अगर मैं मैंगोस परचेज करता हूँ और उसके बाद मैं उससे जूस मैंगो जूस जो है वो बना लेता हूँ, तो ये बिल्कुल डिफरेंट आइटम हो जाता है. तो उसका मतलब है ये मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन में आ रहा है. मैं कोई भी रॉ मटेरियल लेता हूँ और उससे कोई यूजफुल आइटम बना लेता हूँ जिसका यूज जो है वो रॉ मटेरियल से हट के है, तो इसका मतलब है ये मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन में आएगा. प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, लिथोग्राफी एंड एनग्रेविंग, इसका मतलब है प्रिंटिंग, पब्लिशिंग. इसको क्लियरली लॉ ने मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन में डाल दिया कि जी ये मैन्युफैक्चरिंग होगी. प्रिंटिंग मैन्युफैक्चरिंग है, पब्लिशिंग मैन्युफैक्चरिंग है, लिथोग्राफी एनग्रेविंग के अगर आप जो है कुछ टाइप कर रहे हैं किसी आइटम के ऊपर, तो ये सारी चीजें जो है वो मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन में आएगी. फिर जो है मजीद इलेबोरेट उन्होंने किया कि जी कुछ और चीजें भी मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन में आ रही हैं. प्रोसेस एंड ऑपरेशंस ऑफ असेंबलिंग, असेंबलिंग इज अ मैन्युफैक्चरिंग. मिक्सिंग, कटिंग, डाइल्यूटिंग, बॉटलिंग, पैकेजिंग, रीपैकेजिंग और प्रिपरेशन ऑफ गुड्स इन एनी अदर मैनर. इसका मतलब है कि अगर आप टी परचेज कर रहे हैं, ठीक है, आप टी परचेज करके उसको पैकिंग सिर्फ पैक कर दें, ठीक है, आप उसको अगर पैक कर रहे हैं और फिर मार्केट में सेल कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस पैकेजिंग जो है ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग जो है समझी जाएगी और इस जो प्रोसेस है आपका ये मैन्युफैक्चरिंग के अंदर फॉल करेगा और आप सारे मैन्युफैक्चर के बेनिफिट अवेल कर सकते हैं. तो ऑल्दो आपने कोई ऐसा आइटम जो है वो नहीं बनाया, आइटम उसके पैकेजिंग के अंदर वही है जो आपने मार्केट से ओपनली परचेज किया, लेकिन आपने उसकी पैकेजिंग कर ली, तो हमारा लॉ सेल्स टैक्स एक्ट कहता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन में फॉल करेगा. ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन होगी. अच्छा, मैं क्वेश्चन जरा मैं साथ साथ देखता जाऊं हर डेफिनेशन के. अच्छा, ज़िशान असलम साहब कहते हैं कि इफ अ कंपनी रजिस्टर्ड विद एफबीआर शुड आई बी रजिस्टर्ड विद प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटीज. अगर आपकी कंपनी जो है एफबीआर में जो है वो रजिस्टर्ड है, तो आप प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटी में इसलिए तब होंगे अगर आप विद होल्डिंग एजेंट है. अगर आप जो है एडवर्टाइजिंग सर्विसेज ले रहे हैं और आपने विद होल्डिंग करनी है, तो फिर डेफिनेटली हमारे अगर प्रोविंशियल एक्ट्स हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक चीज सामने आती है कि प्रोविंशियल एक्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि बीइंग अ विद होल्डिंग एजेंट, ठीक है, आप डीम्ड रजिस्टर्ड होंगे. जब आप डीम्ड रजिस्टर्ड पर्सन हो जाते हैं तो इसका मतलब है आपने प्रोविंशियल एक्ट में भी रजिस्ट्रेशन करनी है, क्योंकि जब आप प्रोविंशियल सेल्स टैक्स विदहेल्ड करेंगे तो उसको डिपॉजिट करवाने के लिए आपकी रजिस्ट्रेशन लाजमी है. उसके बगैर जो है वो डिपॉजिट नहीं हो सकता, आप चालान प्रिपरेशन नहीं कर सकते. तो आपने फिर अपनी रजिस्ट्रेशन लाजमी करवानी पड़ेगी बीइंग अ विद होल्डिंग एजेंट भी. ओके, फिर हम आउटपुट टैक्स पे आ जाते हैं. इनपुट, जैसे हमने इनपुट टैक्स की डेफिनेशन को देखा कि इनपुट टैक्स जो है वो परचेजेस के ऊपर होता है, और सेल्स टैक्स जो आउटपुट टैक्स है वो सेल्स के ऊपर होता है. जब भी हम सेल्स करते हैं, यानी कि सप्लायर जब भी सेल्स करेगा, रजिस्टर्ड सप्लायर, अगेन मैं कहूंगा ये रजिस्टर्ड पर्सन के लिए डेफिनेशन है, जब भी रजिस्टर्ड सप्लायर सेल करेगा तो वो सेल्स टैक्स चार्ज करेगा. जो सेल्स टैक्स वो चार्ज करेगा उस सेल्स टैक्स को आउटपुट टैक्स कहा जाता है. और सिर्फ सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन ही चार्ज कर सकता है, अनरजिस्टर्ड पर्सन जो है कोई सेल्स टैक्स चार्ज नहीं कर सकता. अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो है, क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि आउटपुट टैक्स की डेफिनेशन स्टार्ट होते ही वो कहते हैं कि इट इज इन रिलेशन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, कि ये चार्ज भी जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन ने करना है, अनरजिस्टर्ड ने नहीं करना. ओके, फिर आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर पे. मींस द नंबर एलोकेटेड टू द रजिस्टर्ड पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट. रजिस्ट्रेशन, जब भी आप जो है एफबीआर में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के अंदर, तो आपको एक नंबर अलॉट किया जाएगा. उस नंबर को जो है वो सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर कहा जाता है, STRN के नाम से. रजिस्टर्ड पर्सन कौन होता है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन इन्होंने लॉ ने डिटेल में बताया हुआ है कि मींस अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड. एक तो एक ऐसा बंदा कि जो अपने आप को रजिस्टर लेता है. अगर मेरा STRN है, इसका मतलब है आई एम अ रजिस्टर्ड पर्सन. फिर मजीद कहता है इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, कि अगर जो है मैं रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हूं, मैं टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई कर रहा हूं, एक कुछ ऐसे गुड्स को सप्लाई कर रहा हूं जो कि सेल्स टैक्स एक्ट सेल्स टैक्स इसके ऊपर चार्ज होता है, लेकिन मैं अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहा एफबीआर के साथ, तो लॉ फिर भी मुझे रजिस्टर्ड पर्सन ही कंसिडर करेगा. और अगर मैं सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करता तो कल को जितने पीरियड के लिए मैंने सेल्स टैक्स चार्ज नहीं किया होगा
वो मुझसे कलेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि मैं लाइबल टू बी रजिस्टर्ड था, ऑल्दो मैंने एक्चुअल रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई थी, क्योंकि लॉ रजिस्टर्ड पर्सन को इसी तरीके से डिफाइन कर रहा है कि आइदर जिसने रजिस्ट्रेशन करवा ली है या फिर कोई ऐसा बंदा जो कि टैक्सेबल एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व है लेकिन अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहा, तो इसका मतलब है कि वो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है लेकिन रजिस्ट्रेशन जानबूझकर नहीं करवा रहा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो सारे के सारा सेल्स टैक्स जो मैंने चार्ज नहीं किया होगा उस सेल्स के पीरियड में, वो सारा का सारा मुझसे कलेक्ट किया जा सकता है। फिर अगेन प्रोवाइडेड दैट, एक प्रोवाइजर डाला हुआ है, प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन लायबल टू बी रजिस्टर्ड बट नॉट registered under but not actually registered under this act shall not be entitled to any benefit available to a registered person under any of the provisions of this act or the rules made thereunder। यहाँ पर जो है एक ऐसा इंडिविजुअल, एक ऐसा पर्सन जो लायबल टू बी रजिस्टर्ड है लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहा, उसको दो नुकसान है। एक तो सेल्स टैक्स जो चार्ज नहीं किया होगा वो सारा का सारा उससे कलेक्ट किया जा सकता है। दूसरा, इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट जो है वो कभी भी नहीं दे सकता। जितने भी बेनिफिट्स हैं, क्योंकि आप लोगों को एक चीज में बता के आया कि सेल्स टैक्स जो है वो कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पे करना, अल्टीमेटली वो कंज्यूमर ने पे करना है। जो दरमियान में सप्लाई चेन में जितने भी पर्सन हैं वो सब इन टैक्स एडजस्टमेंट्स लेते हैं, इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट्स लेते हैं कि अगर जो है वो 10 रुपीज सेल्स टैक्स पे किया हुआ है और 12 रुपीज कलेक्ट कर लिया है तो 12 में से 10 की एडजस्टमेंट मिल जाएगी और 2 रुपीज जो है वो गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे। इस चीज को मैं एक्सेल शीट में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, लेकिन इसका मतलब है कि हमें बेनिफिट मिल रहा है। सप्लाई चेन में किसी ने दरमियान में जो है वो सेल्स टैक्स पे नहीं करना, अल्टीमेटली ये कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसका मतलब है कि अगर एक बंदा लायबल टू बी रजिस्टर्ड है और वो अपने आप को रजिस्टर नहीं करवा रहा, तो जो इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट का बेनिफिट है वो कभी भी अवेल नहीं कर सकेगा। ओके, फिर हम आगे आ जाते हैं डेफिनेशन पे रिटेल प्राइस की, कि रिटेल प्राइस जो है वो क्या है विद रेफरेंस टू थर्ड शेड्यूल्स। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता जाऊं कि हमारे सेल्स टैक्स एक्ट में शेड्यूल्स हैं। जैसे ही सेक्शन खत्म होते हैं, हमने इनकम टैक्स एक्ट में ऑर्डिनेंस में भी यही देखा था, सेक्शंस के बाद हमारे शेड्यूल शुरू हो जाते हैं। शेड्यूल्स में रेट्स अवेलेबल थे, ठीक है, एग्जेम्पशंस अवेलेबल थी। इसी तरह रिटेल प्राइस जो है वो थर्ड शेड्यूल आइटम्स के लिए जो है वो बनाई गई है। थर्ड शेड्यूल, इस तरह हमारे सेल्स टैक्स में कुछ शेड्यूल्स हैं, थर्ड शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स्थ शेड्यूल। ये शेड्यूल्स क्या हैं? थर्ड शेड्यूल आइटम के अंदर, थर्ड शेड्यूल के अंदर वो आइटम्स जो है इंक्लूड होते हैं जो कि डे टू डे यूज के आइटम्स होते हैं, जो कंज्यूमर जो है डेली जो है वो यूज कर रहे होते हैं। इस तरह फिफ्थ शेड्यूल में वो आइटम्स होते हैं जिनके ऊपर टैक्स 0% अप्लाई होता है। सिक्स्थ शेड्यूल में वो आइटम्स होते हैं जो लॉ में एग्जेम्प्ट होते हैं। ठीक हो गया? तो ये डिफरेंट शेड्यूल्स बनाए हुए हैं और हर एक के ऊपर जो है सेल्स टैक्स रेट्स जो है वो डिफरेंट अप्लाई होते हैं, उनके प्रोसीजर चार्ज करने के अलग होते हैं। रिटेल प्राइस जो है वो थर्ड शेड्यूल आइटम के रेफरेंस से देखी जाती है। ये क्या होती है? इट इज अ प्राइस फिक्स्ड बाय द मैन्युफैक्चरर इंक्लूसिव ऑफ ऑल ड्यूटीज, चार्ज एंड टैक्सेस at which any particular brand or variety of any article should be sold to the general body of consumer. So if more than one price is so fixed for the same brand or variety, the highest of such price. इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने अभी ये चीज जो है बताई है कि इट इज अ मल्टी स्टेज टैक्स, लेकिन यहाँ पर जो है हमारे थर्ड शेड्यूल आइटम्स के लिए, थर्ड शेड्यूल में जितने भी आइटम्स हैं उनके लिए ये प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक आइटम जो है मैन्युफैक्चरर, एक आइटम जो है वो 60 रुपीज का सेल करता है डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर उसको 60 का परचेज करके 70 का सेल करता है। देन होलसेलर उसको 80 का सेल करता है एंड देन रिटेलर फॉर एग्जांपल उसको 100 का सेल कर रहा है। ठीक है, थर्ड शेड्यूल आइटम्स के लिए सेल्स टैक्स का प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, वो इस अंदाज में डिफरेंट है कि मैन्युफैक्चरर ने, जब अगर हम नॉर्मल प्रोसीजर पे जाएंगे तो नॉर्मल प्रोसीजर ये है कि मैन्युफैक्चरर ने 60 रुपीज के ऊपर 17% चार्ज करना है। ठीक है, देन डिस्ट्रीब्यूटर ने 70 रुपीज के ऊपर 17% चार्ज करना है। होलसेलर ने 80 रुपीज के ऊपर 17% चार्ज करना है। ये वैट का कॉन्सेप्ट है, लेकिन थर्ड शेड्यूल आइटम के लिए ऐसे नहीं होता। मैन्युफैक्चरर सारा का सारा सेल्स टैक्स फर्स्ट स्टेज पर कलेक्ट कर लेगा। इसका मतलब है कि मैन्युफैक्चरर जो है वो 60 रुपीज के ऊपर 17% चार्ज नहीं करेगा, बल्कि रिटेल प्राइस के ऊपर, वो रिटेल प्राइस जो उसने पैकेट के ऊपर जो है इनग्रेव की होगी, उसके ऊपर फर्स्ट स्टेज पे ही डिस्ट्रीब्यूटर से सारा का सारा सेल्स टैक्स कलेक्ट कर लेगा।
इसका मतलब कि मैन्युफैक्चरर जो है 60 का सेल कर रहा है, लेकिन सेल्स टैक्स जो है वो 100 रुपीज के ऊपर कलेक्ट कर रहा है फर्स्ट स्टेज पर ही। 100 रुपीज वो हैं जो रिटेलर ने कंज्यूमर को सेल करने हैं। तो यहाँ पर थर्ड शेड्यूल आइटम के लिए जो है वो सेल्स टैक्स की ट्रीटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। बाकी सारे आइटम्स के लिए नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर जो अल्टीमेटली सेल प्राइस होगी रिटेलर की, वो सेल्स टैक्स मैन्युफैक्चरर फर्स्ट स्टेज पर ही कलेक्ट कर लेता है। ये हमारे सेल्स टैक्स एक्ट में थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसीजर है थर्ड शेड्यूल आइटम्स के लिए खाली। बाकी सब के लिए जो है वो मल्टी स्टेज टैक्स सिस्टम का जो नॉर्मल वैट का प्रोसीजर है वही चलेगा। उसको भी हम अभी देखते हैं कि वो किस अंदाज में रन होगा। ओके, राशिद अनीफ साहब पूछ रहे हैं कि व्हाट इज सेल्स टैक्स परसेंटेज। राशिद अनीफ साहब मैं आता हूँ, मैं सेक्शन 3 पे जब आऊंगा तो मैं आपको बताता हूँ कि परसेंटेज हमारी क्या है। ओके, रिटेलर क्या होते हैं? मींस अ पर्सन सप्लाइंग गुड्स टू जनरल पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन। रिटेलर जो है वो जनरल पब्लिक को सेल करता है कंजम्पशन के लिए। सेल्स टैक्स को डिफाइन किया है। फिर सेल्स टैक्स क्या है? द टैक्स, एडिशनल टैक्स और डिफॉल्ट सरचार्ज लेविड अंडर दिस एक्ट, यानी कि सेल्स टैक्स एक्ट के अंदर जितना भी सेल्स टैक्स चार्ज हो रहा है, एडिशनल टैक्स लग रहा है, पेनल्टीज लग रही है, डिफॉल्ट सरचार्ज लग रहा है, वो सब सेल्स टैक्स की ही डेफिनेशन में आएगी। अ फाइन, पेनल्टी और फी इम्पोज्ड और चार्ज अंडर दिस एक्ट, कोई भी फाइन, कोई भी पेनल्टी, कोई भी फी जो इस एक्ट के अंदर चार्ज हो रहा है उसको हम सेल्स टैक्स कहेंगे, यानी कि सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में चार्ज हो रहा है। सी कहता है एनी अदर सम पेएबल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर। कोई भी टैक्स जो है जो हमें इस एक्ट के अंदर पे करना पड़े, वो सारा का सारा टैक्स जो है वो सेल्स टैक्स की डेफिनेशन में फॉल करेगा। ओके, हम आगे चलें तो हमें सप्लाई की डेफिनेशन नजर आती है कि व्हाट इज सप्लाई? means a sale or other transfer of the right to dispose of goods as owner। ठीक है, या आप सेल करें या आप गुड्स को डिस्पोज करें as owner, including such sale or transfer under a hire purchase agreement and also includes। उसने तो पहले क्लियरली बता दिया, ब्रॉडली बता दिया कि जी हर किस्म की सेल सप्लाई कहलाएगी, और अगर जो है डिस्पोज करता है गुड्स ओनर, ठीक है, यानी कि इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि गुड्स जो है वो हमारे बिजनेस में पड़े हुए हैं, मैं बिजनेस से गुड्स जो है मैं अपना बिजनेस क्लोज कर रहा हूँ, उन गुड्स को उठा के पर्सनल यूज के लिए यूज करने लगा हूँ, अब वो गुड्स बिजनेस में नहीं रहे बल्कि मैं अपने घर ले आया, तो ये भी सप्लाई कंसिडर की जाएगी, इसके ऊपर भी सेल्स टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको उसने ब्रॉडली फिर मजीद एक्सप्लेन किया कि इसके अंदर ये चीजें भी शामिल हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग उसने जो है ब्रॉडली एक बात कर ली कि जी हर किस्म की सेल, हर किस्म की डिस्पोजल सप्लाई की डेफिनेशन में है। उसके बाद मजीद एक्सप्लेन कर रहा है कि ये चीजें भी शामिल हैं putting to private business or non-business use of goods produced or manufactured in the course of taxable activity for purpose other than those of making a taxable supply। कि आप जो है वो taxable supply नहीं कर रहे और उसको आप प्राइवेट यूज में, एक आइटम आपने मैन्युफैक्चर किया इंडस्ट्री में, उसको घर ले आए, तो इसका मतलब है ये सप्लाई और आपने इसके ऊपर सेल्स टैक्स पे करना है। ऑक्शन और डिस्पोजल ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई अ डेट ओड बाय अ पर्सन। अगर आप ऑक्शन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का टैक्स जो है वो किसी इंडस्ट्री ने पे करना है, इंडस्ट्री टैक्स नहीं पे कर रही, अब गवर्नमेंट अगर उसकी इंडस्ट्री को ऑक्शन में सेल आउट कर देती है तो उसके ऊपर भी सेल्स टैक्स चार्ज होगा अगर वो टैक्सेबल आइटम है। पोजेशन ऑफ टैक्सेबल गुड्स हेल्ड इमीडिएटली बिफोर अ पर्सन सीजेस टू बी अ रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, कोई ऐसे टैक्सेबल गुड्स, ठीक है, एक बंदा जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं रहा, अपना बिजनेस क्लोज कर रहा है, उसकी एक्टिविटीज खत्म हो गई है, वो सारे के सारे गुड्स जो है अपने साथ ले जाता है, अपने पोजेशन में ले लेता है, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करने लगता है, तो इसका मतलब है कि उसने ये एक टैक्सेबल एक्टिविटी होगी कि गुड्स अब बिजनेस के नहीं रहे बल्कि पर्सनल रह गए हैं, हमारे जाती इस्तेमाल में आ गए हैं, तो अब इस गुड्स के ऊपर जब वो जाती इस्तेमाल में आ जाएंगे तो एक टैक्सेबल एक्टिविटी कंसीडर की जाएगी और इसके ऊपर जो है सेल्स टैक्स पे करना पड़ेगा। In case of manufacturers of goods belonging to another person, that transfer or delivery of such goods to the owner or to a person nominated by him। ये पॉइंट डी जो है टॉल मैन्युफैक्चरिंग की बात करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल टॉल मैन्युफैक्चरिंग ये है कि मुझे किसी ने जो है एक आइटम ला के दिया, आइटम किसी और का है, ठीक है, कोई रॉ मटेरियल ला के दिए, रॉ मटेरियल किसी और इंडस्ट्री के है और मुझे कहता है कि जी इससे फिनिश गुड्स बना के मुझे वापस कर दो, ठीक है, और मैं फिर मार्केट में सेल करूंगा। ठीक है, मुझे क्योंकि मेरे पास मशीनरी मौजूद है, उस बंदे के पास जो रॉ मटेरियल मुझे सप्लाई कर रहा है उसके पास मशीनरी अवेलेबल नहीं है, वो रॉ मटेरियल परचेज करता है, मुझे कहता है कि इसको सिर्फ प्रोसेस से गुजारो और प्रोसेस से गुजारने के बाद मुझे वापस कर दो, फिर मैं मार्केट में इस फिनिश गुड्स को सेल करूंगा। ये टॉल मैन्युफैक्चरिंग है। तो यहाँ पर टॉल मैन्युफैक्चरिंग की बात की जा रही है कि इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन, कि आपने मैन्युफैक्चरिंग की लेकिन वो गुड्स किसी और के हैं, द ट्रांसफर ऑफ डिलीवरी ऑफ सच गुड्स टू द ओनर। तो जब टॉल मैन्युफैक्चरिंग के बाद ये गुड्स मैंने ओनर्स को वापस दिए तो ये भी जो है वो सप्लाई ही कंसीडर की जाएगी और इसके ऊपर भी सेल्स टैक्स चार्ज
किया जाएगा। तो ये जो है वो सप्लाई की डेफिनेशन आ गई हमारे पास। अच्छा, मशहूदुद्दीन मोहम्मद साहब का क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चरर who has not paid input tax on supplies, then on sale of his final goods he will collect output tax or not? मशहूद साहब, इस चीज को हमें ये डिपेंड करता है कि अगर हो सकता है कि मैं एक आइटम खरीद रहा हूँ, ठीक है, वो लॉ में एग्जेम्प्ट है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल में देता हूँ, मैंने पेपर खरीदा, ठीक है, मैंने पेपर खरीदा, पेपर जो है वो टैक्सेबल है, ठीक है, लेकिन जो बुक्स है वो बुक्स, उस पेपर को मैंने यूज करके बुक्स बना ली, बुक्स एग्जाम्प्ट है। तो हो सकता है पेपर की स्टेज पे तो मुझे सेल्स टैक्स पे करना ही करना है, इनपुट टैक्स पे करना है, लेकिन उससे जो न्यू आइटम बन गया उसको लॉ ने एग्जाम्प्ट किया हुआ है, बुक्स आर एग्जाम्प्ट, तो इसका मतलब है अब मैं चार्ज नहीं करूंगा। इसी तरह इसका रिवर्सल भी हो सकता है कि जो मैं आइटम परचेज कर रहा हूँ हो सकता है लॉ में वो एग्जाम्प्ट हो, लेकिन जब उससे मैं एक न्यू आइटम बना लेता हूँ, फिनिश प्रोडक्ट, हो सकता है वो टैक्सेबल हो। तो ये डिपेंड करता है कि जो आप आइटम सेल कर रहे हैं वो टैक्सेबल है कि नहीं। अगर इनपुट टैक्स आपने पे नहीं किया, हो सकता है उसका फिनिश प्रोडक्ट जो है वो टैक्सेबल हो जाए, लेकिन अगर आप एक आइटम परचेज कर रहे हैं और वो एग्जेम्प्ट है और आप उसी कंडीशन में बेच रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली आपने भी सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करना। ये आइटम टू आइटम ही डिपेंड करेगा। अच्छा, टॉल मैन्युफैक्चरिंग की एग्जांपल जो है वो दोबारा से कह रहे हैं कि जी इसमें टॉल मैन्युफैक्चरिंग की एग्जांपल ये है, फॉर एग्जांपल मैं जो हूँ, मेरे पास जो है वो जूस जूस मैन्युफैक्चरिंग की मशीनरी मौजूद है, ठीक है, और मिस्टर ए, कोई भी मिस्टर ए है, वो मेरे पास आते हैं कि जी मेरे पास मैंगोज हैं, ठीक है, लेकिन मेरे पास मशीनरी मौजूद नहीं है, और मैं ये चाहता हूँ कि जी इस मैंगो से मैं मैंगो जूस बनाऊं, ठीक है। अब वो मशीनरी उनके पास नहीं है, वो मेरे पास एक ह्यूज लेवल पर मौजूद है, तो मैं उनसे वो मैंगोज ले लूंगा, मैं जूस जो है वो मैन्युफैक्चर करने के बाद उसको उसकी बॉटलिंग करने के बाद मैं मिस्टर ए को वापस कर दूंगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ टॉल मैन्युफैक्चरिंग कि जी जो आइटम बन रहा है मैं उसका ओनर नहीं हूं, मैं सिर्फ एक प्रोसेस अप्लाई कर रहा हूं, और प्रोसेस अप्लाई करने के बाद वो गुड्स जो है मिस्टर ए को वापस कर रहा हूं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टॉल मैन्युफैक्चरिंग। तो टॉल मैन्युफैक्चरिंग के केस में जब मैंने वो आइटम प्रिपेयर कर लिया, मैन्युफैक्चर कर लिया, उसके बाद मिस्टर ए को उसके ओरिजिनल ओनर को वापस अप्लाई कर रहा हूं, तो इट विल बी कंसिडर्ड अ टैक्सेबल इवेंट, तो इसके ऊपर मुझे टैक्स चार्ज करना पड़ेगा। अच्छा, टैक्सेबल एक्टिविटी क्या होती है? मींस एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के मतलब के जिसमें कमर्शियल पर्पस आपका इन्वॉल्व हो, जहां पे प्रॉफिट अर्निंग आपके आपकी इंटेंशंस हो, ठीक है। मींस एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरीड ऑन बाय अ पर्सन वेदर और नॉट फॉर प्रॉफिट एंड इंक्लूड्स एनी एक्टिविटी कैरीड ऑन इन द फॉर्म ऑफ अ बिजनेस, ट्रेड और मैन्युफैक्चर, ठीक है। आपके बिजनेस में, ट्रेड में या मैन्युफैक्चर में कोई एक्टिविटी इन्वॉल्व हो, या आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, या कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड शामिल है, कोई एडवेंचर है कि जी उसमें हमने ट्रेडिंग करनी है, हमने प्रॉफिट्स गेन करने हैं। एनी एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व द सप्लाई ऑफ गुड्स, द रेंडरिंग और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज और बोथ टू अनदर पर्सन। कोई ऐसी एक्टिविटी जहां पर आप गुड्स सप्लाई कर रहे हैं या आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या आप दोनों काम कर रहे हैं, या टैक्सेबल एक्टिविटी होगी। वन ऑफ एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड। अगर आप वन ऑफ एडवेंचर कोई कर रहे हैं, एक दफा आप एक आइटम जो है परचेज करके सेल कर रहे हैं, लेकिन आपका मकसद ये है कि आपने उससे प्रॉफिट अर्न करना है, तो वो वन ऑफ एडवेंचर भी, वो वन ऑफ इवेंट भी आपका टैक्सेबल एक्टिविटी होगा, लेकिन ये आपकी इंटेंशन पे है कि जी आपने इसलिए एक्टिविटी की ताकि मुझे कुछ जो है वो प्रॉफिट बच जाए। अगर आपने इस नियत से की है तो इसका मतलब है वो वन ऑफ एडवेंचर भी आपका जो है टैक्सेबल एक्टिविटी कंसिडर की जाएगी। एनीथिंग डन और अंडरटेकन ड्यूरिंग द कमेंसमेंट और टर्मिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी काम आप शुरू में करें या उसको एंड करें, ठीक, इकोनॉमिक एक्टिविटी के। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि आप लोगों ने एक बिजनेस जो है वो पूरा सेटअप था, आप बिजनेस क्लोज करने जा रहे हैं, बिजनेस क्लोज करने के बाद उसके अंदर जितने भी आइटम्स है वो आप मार्केट में सेल कर रहे हैं, मशीनरी सेल कर रहे हैं, आपका स्टॉक पड़ा हुआ है, आप स्टॉक सेल कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे टर्मिनेशन के ऊपर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, ये सारी भी आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी ही कंसिडर की जाएगी, और जो भी टैक्सेबल एक्टिविटी होगी उस पर आपको सेल्स टैक्स चार्ज करना पड़ेगा। फिर एक्सक्लूजन बता दी, but does not include the activities of an employee providing service in that capacity to an employer। तो एम्प्लॉय जो सर्विस एम्प्लॉयर को दे रहे हैं वो इससे एक्सक्लूड कर लिया कि वो टैक्सेबल एक्टिविटी में नहीं आएगा। एन एक्टिविटी कैरीड ऑन बाय इंडिविजुअल एज अ प्राइवेट रिक्रिएशनल परसूट और हॉबी, अगर कोई एक्टिविटी हॉबी के तौर पे की जा रही है, ठीक है, तो वो एक्टिविटी जो है वो टैक्सेबल एक्टिविटी में काउंट नहीं की जाएगी अगर वो एज अ हॉबी है, चाहे वो इंडिविजुअल करे। वो फिर सी में कह दिया कि एनी एक्टिविटी कैरीड ऑन बाय अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, या इंडिविजुअल के अलावा कोई परफॉर्म करे, कोई ऐसी एक्टिविटी है कि एज अ हॉबी या रिक्रिएशनल परसूट के लिए की जा रही है, तो इस चीज को हम टैक्सेबल एक्टिविटी में शामिल नहीं करेंगे।
अच्छा, राशिद हनीफ साहब कह रहे हैं कि जी आप एग्जेम्प्ट सप्लाईज, टैक्सेबल सप्लाईज और जीरो रेटेड सप्लाईज को जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। तो जरा मैं यहाँ पे एक पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा प्रोविंशियल सेल्स टैक्स के हवाले से और फेडरल सेल्स टैक्स के हवाले से। फेडरल सेल्स टैक्स में अगर हम देखें तो हर गुड, कोई भी गुड हो, वो बाय डिफॉल्ट टैक्सेबल होता है जब तक लॉ उसको एग्जेम्प्ट ना कर दे। एवरी गुड इज अ टैक्सेबल गुड, ठीक है, जब तक लॉ उसको एग्जेम्प्ट ना कर दे। एग्जेम्प्ट कैसे करेगा? 6th शेड्यूल के अंदर अगर गुड्स को डाल दिया गया है तो इसका मतलब है वो एग्जेम्प्ट हो गया। अब राशिद साहब कह रहे हैं कि जी शेड्यूल्स हमारे साथ शेयर करें। तो राशिद साहब अगर आप सेल्स टैक्स एक्ट डाउनलोड कर ले तो जहां पर सेक्शन खत्म होते हैं उसके बाद आपको शेड्यूल्स नजर आएंगे। उसमें आप 6th शेड्यूल देखें, उसमें डिटेल में आइटम्स बताए हुए हैं। मैं सारे आइटम्स को यहाँ पर नहीं प्रिंट कर सकता, फिर भी जब मैं सेक्शन 13 पे आऊंगा मैंने कुछ आइटम्स बता दिए हैं अभी, क्योंकि मैं सेक्शन 13 पे नहीं पहुंचा, लेकिन फिर भी मैंने कुछ आइटम्स बता दिए हैं जो कि एग्जेम्प्ट है। तो आप जो है शेड्यूल में जाएंगे, आप 6th शेड्यूल ओपन करेंगे तो आपको जो है वो आइटम्स मिल जाएंगे जो लॉ ने एग्जेम्प्ट कर दिए। 5th शेड्यूल खोलेंगे, जीरो रेटेड आइटम्स मिलेंगे। 3rd शेड्यूल खोलेंगे, उसके अंदर डेली यूज के आइटम्स मिलेंगे जिसके ऊपर जो है स्पेशल प्रोसीजर अप्लाई किया जाता है कलेक्शन ऑफ सेल्स टैक्स के लिए। अच्छा, बात उसी तरफ आ जाते हैं कि सेल्स टैक्स एक्ट गुड्स के हवाले से फेडरल जो हमारा सेल्स टैक्स एक्ट है उसके अंदर हर गुड टैक्सेबल होता है जब तक स्पेसिफिकली लॉ एग्जेम्प्ट ना कर दे। अगर हम प्रोविंशियल सेल्स टैक्स में जाएं तो हर सर्विस एग्जेम्प्ट होती है जब तक किसी शेड्यूल के अंदर उसको, 2nd शेड्यूल के अंदर उसको टैक्सेबल ना कर दिया जाए। ये पॉइंट बहुत जरूरी है समझना कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। सेल्स टैक्स एक्ट गुड्स में हर गुड टैक्सेबल है जब तक उसको एग्जेम्प्ट ना कर दे सेल्स टैक्स एक्ट। प्रोविंसेस के अंदर अगर हम जाए, हर सर्विस एग्जेम्प्ट है जब तक 2nd शेड्यूल के अंदर उसका नाम ना आ जाए। आप किसी भी प्रोविंशियल एक्ट को खोल के देखेंगे आपको 2nd शेड्यूल नजर आएगा, और 2nd शेड्यूल के अंदर वो आइटम्स, वो सर्विसेज होती हैं जो कि टैक्सेबल होती है। अगर 2nd शेड्यूल के अंदर किसी सर्विस का नाम आ गया इसका मतलब है वो सर्विस टैक्सेबल होगी, और अगर 2nd शेड्यूल के अंदर किसी सर्विस का नाम नहीं है तो इसका मतलब है वो सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, आपने उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करना। लेकिन गुड्स के हवाले से चीजें डिफरेंट है। अगर कहीं 6th शेड्यूल में एग्जेम्पशन का जिक्र नहीं है, 5th शेड्यूल में जीरो रेटिंग का जिक्र नहीं है, वो आइटम किसी शेड्यूल में फॉल नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने उस गुड्स के ऊपर बाय डिफॉल्ट सेल्स टैक्स चार्ज करना है। अच्छा, कॉन्ट्राडिक्ट किस हवाले से राशिद साहब कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि बोथ ऑफ दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट यू जस्ट सेड। ये जो है, क्योंकि अगर हम लॉ पढ़े ना, अगर मैं अभी सेक्शन 3 पे आऊंगा आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि सेक्शन 3 क्या कहता है, और जब हम प्रोविंशियल एक्ट पढ़ेंगे तो वहां पर चीजें डिफरेंट है। क्योंकि प्रोविंशियल एक्ट के अंदर जो आपका चार्जिंग सेक्शन है वो क्लियरली कहता है एवरी सर्विस मेंशन इन द 2nd शेड्यूल। जब लॉ खुद कह रहा है कि हर वो सर्विस जो 2nd शेड्यूल में मेंशन है सिर्फ वो टैक्सेबल है, तो इसके अलावा अगर कोई सर्विस मेंशन नहीं है तो हम उसको क्यों टैक्स लगाएं? हम टैक्स लगा नहीं सकते क्योंकि हमें लॉ मना कर रहा है, हमें लॉ प्रोहिबिट कर रहा है कि 2nd शेड्यूल की सर्विसेज जो है सिर्फ वही टैक्सेबल होंगी। जब उसके अंदर नहीं है नाम तो इसका मतलब इट इज एग्जेम्प्ट, ठीक है। लेकिन सेल्स टैक्स एक्ट में ऐसा नहीं है। सेल्स टैक्स में कहता है एवरी गुड इज टैक्सेबल जब तक जो है वो एग्जेम्प्ट ना कर दिया जाए। तो वो कॉन्ट्राडिक्शन है, एक दूसरे के ऑपोजिट जरूर है, लेकिन दोनों लॉज अलग अलग है, और हर लॉ के अंदर जो बात की है हमने उसी को फॉलो करना है। थिंग्स रिक्वायर्स टू बी डन इन अ पर्टिकुलर मैनर और नॉट टू बी डन एट ऑल, ठीक है। तो जो है वो उसी तरीके से चलेगा। ओके, टैक्सेबल गुड्स क्या होते हैं? मींस ऑल गुड्स। ये देखिए आपकी बात की डेफिनेशन जो आपने भी बात की उसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी कि टैक्सेबल गुड्स क्या है। मींस ऑल गुड्स अदर देन दोज व्हिच हैव बीन एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 13। इसका मतलब है कि जब तक सेक्शन 13 यानी कि 6th शेड्यूल के अंदर कोई आइटम एग्जेम्प्ट ना हो जाए उसके अलावा हर गुड टैक्सेबल गुड होगा। जब हर गुड टैक्सेबल गुड होगा तो उसके ऊपर आपने चार्ज करना है। लेकिन सर्विसेज में ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि एवरी सर्विस whichever is mentioned in 2nd schedule it is a taxable service, और इसके अलावा जो भी है वो सारी की सारी exempt हो जाएगी, ठीक हो गया। और यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पे कहता है every good is taxable until and unless it is mentioned in the 2nd schedule। तो दोनों की वर्डिंग्स एक दूसरे के ऑपोजिट जाती है। ओके, टैक्सेबल गुड्स हो गया। देन हम आ जाते हैं टैक्सेबल सप्लाई के ऊपर। मींस अ सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स मेड बाय एन इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर इंक्लूडिंग डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर। जो भी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करेगा वो सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई होगी जब तक
कोई ऐसे गुड्स की सप्लाई ना की जा रही हो जो कि 6th शेड्यूल में एग्जेम्प्ट है। अगर एग्जेम्प्ट आइटम को सप्लाई कर रही है, इट इज नॉट अ टैक्सेबल सप्लाई। इसके अलावा जितने भी गुड्स सप्लाई कर रही है वो सारे के सारे टैक्सेबल गुड्स ही समझे जाएंगे। इवन जीरो रेटेड आइटम्स भी जो है वो टैक्सेबल सप्लाई ही समझी जाती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर सेल्स टैक्स तो चार्ज होता है, लेकिन एट द रेट ऑफ 0% चार्ज होता है। एग्जेम्प्ट आइटम्स के ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज ही नहीं होता। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो कि टैक्सेबल सप्लाई जो है, हर गुड्स की सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई होगी जब तक आप एग्जेम्प्टेड आइटम सप्लाई ना करें। सिर्फ एग्जेम्प्टेड आइटम की सप्लाई जो है वो टैक्सेबल सप्लाई नहीं होगी। इसके अलावा हर आइटम की सप्लाई, चाहे वो 0% से क्यों ना टैक्स हो रही हो, वो टैक्सेबल सप्लाई ही कंसिडर की जाएगी। अच्छा, नुमान भट्ट साहब कहते हैं कि एक गुड जो है, देखिए नुमान साहब, आपका क्वेश्चन है कि क्या एक गुड सेकंड शेड्यूल में प्रोविंशियल एक्ट के फॉल कर रहा हो तो क्या वो 6th शेड्यूल में फेडरल के फॉल करेगा? नुमान साहब, एक चीज, इसके अलावा भी कुछ ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं, मैं आपको बताता जाऊं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रोविंशियल एक्ट जो है हमारे पास, वो सर्विसेज की बात करते हैं। फेडरल एक्ट जो है वो गुड्स की बात करता है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक सर्विस प्रोविंशियल में मेंशन हो और वही सर्विस एक्ट फेडरल एक्ट में आए, क्योंकि फेडरल एक्ट जो है वो गुड्स के साथ, वो टेंजिबल आइटम्स के साथ रिलेट कर रहा है, और जो हमारा प्रोविंशियल एक्ट है वो सर्विसेज के साथ रिलेट कर रहा है, वो पेरिशेबल आइटम के साथ रिलेट कर रहा है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि वहां पर एक आइटम हो, यहाँ पर हो नहीं सकता, क्योंकि फेडरल एक्ट सिर्फ गुड्स को रिलेट कर रहा है और प्रोविंशियल एक्ट सर्विसेज को रिलेट कर रहा है। अच्छा, टैक्सेबल गुड, मोहम्मद दानिश साहब कह रहे हैं कि दोबारा से एक्सप्लेन कर दें। तो टैक्सेबल गुड्स क्या है? हर गुड की सप्लाई टैक्सेबल, हर गुड जो टैक्सेबल होगा, यानी कि एवरी गुड which is not mentioned in 6th schedule is a taxable good. Every good which is not mentioned in 6th schedule of sales tax act or is not exempted from sales tax act is a taxable good. और जब भी हम taxable goods की सप्लाई करेंगे, it will be called taxable supply. होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, मोहम्मद यूसुफ साहब कहते हैं कि टॉल मैन्युफैक्चरिंग इज अ प्रोविजन ऑफ सर्विस। टॉल मैन्युफैक्चरिंग इज अ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, लेकिन उस आइटम की, फिनिश आइटम की सप्लाई, इट इज अ सेल ऑफ गुड। जब आपने मैन्युफैक्चरिंग कर ली और उसके बाद एक आइटम जो है वो आपने बना दिया, फिनिश प्रोडक्ट आपने जो है वो बना दिया, उसके बाद आप उसको जब सेल करेंगे तो इट विल बी कॉल्ड सप्लाई ऑफ गुड। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, तो इसका मतलब है कि हर यूनिट जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो क्या वो सर्विसेज दे रहा है? बिल्कुल वो सर्विस कर रहा है, लेकिन उसके बाद जो आइटम उससे मैन्युफैक्चर हो रहा है वो तो गुड्स है, और जब वो गुड को सप्लाई करेगा तो उसने जो है वो फेडरल एक्ट के अंदर ही फॉल करना है। अच्छा, राशिद हनीफ साहब कहते हैं कि सिमिलरली वी कुड से एवरी सर्विस इज टैक्सेबल अनलेस मेंशन्ड एग्जेम्प्ट इन एक्ट। नहीं राशिद साहब, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, गुड्स के ऊपर सेल्स टैक्स एक्ट 1990 अप्लाई हो रहा है, सर्विसेज के ऊपर प्रोविंशियल एक्ट्स अप्लाई हो रही है। गुड्स, every good is a taxable until and unless mentioned in the 6th schedule or exempted. ठीक है, every good is taxable until and unless exempt. हर गुड टैक्सेबल होगा जब तक वो exempt ना कर दिया जाए। सर्विसेज जब मैं कहता हूं तो मैं प्रोविंशियल एक्ट्स की बात करता हूं, जो एक्ट हम पढ़ रहे हैं हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जब हम प्रोविंशियल एक्ट पे आते हैं तो वहां कहा जाता है कि एवरी सर्विस मेंशन्ड इन द 2nd शेड्यूल इज टैक्सेबल, otherwise all the services which is not mentioned in the 2nd schedule is exempt. ठीक है, आई थिंक these are very clear wordings, इसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। और फिर भी हम इस चीज को जब हम प्रोविंशियल लेवल पे आएंगे तो वहां पर देख लेंगे। फिर हम आ जाते हैं टाइम ऑफ सप्लाई के ऊपर, कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या है। A supply of good other than under hire purchase agreement means the time at which the supply are delivered or made available to the recipient of the supply, or the time when any payment is received by the supplier in respect of that supply, whichever is earlier. ठीक है, ये पॉइंट बड़ा समझने वाला है कि टाइम ऑफ सप्लाई को क्यों एक्सप्लेन किया गया, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड करेगा कि आपने सेल्स टैक्स कब पे करना है। टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड करेगा कि आपने सेल्स टैक्स कब पे करना है। देखिए, सेल्स टैक्स जो है वो एक्रूअल्स पर भी पे होता है। अगर मैं किसी को आज सेल कर रहा हूं, मैंने इनवॉइस के अंदर सेल्स टैक्स चार्ज कर दिया, अगर मुझे बायर ने पेमेंट नहीं की, लेकिन मैंने जो है वो मुझे 3 मंथ्स बाद पेमेंट कर रहा है, लेकिन मैंने सेल्स टैक्स उसके बिहाफ पे अभी से जमा करवा देना है अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न में। अगर जो है वो सितंबर की सेल है
मुझे अक्टूबर में रिटर्न फाइल करते हुए सारा का सारा सेल्स टैक्स पे कर देना है। ठीक हो गया, इररिस्पेक्टिव के मुझे पेमेंट रिसीव होती है या नहीं होती। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि मैं गुड्स सप्लाई ना करूं और मुझे पेमेंट्स पहले से मिल जाए, मुझे एडवांस पहले से रिसीव हो जाए, तो लॉ ये कहता है कि अगर आपको एडवांस मिल रहा है तो एडवांस के ऊपर भी आपने सेल्स टैक्स पे करना है। बेशक गुड्स आप बाद में सप्लाई करें, क्योंकि लॉ में जो वर्ड यूज हुआ है विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, तो या आप गुड्स की सेल कर दें तब आपने सेल्स टैक्स पे करना है, या आपको एडवांस में पेमेंट रिसीव हो जाए लेकिन आपने गुड्स सेल नहीं किए, तो जितनी आपको पेमेंट रिसीव होगी उसके ऊपर भी आपने 17% सेल्स टैक्स अभी से पे कर देना है। तो टाइम ऑफ सप्लाई जो है इस लिहाज से जरूरी है क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड करेगा कि किस पॉइंट के ऊपर मुझे सेल्स टैक्स पेमेंट करनी होगी। ओके, मोहम्मद दानिश साहब कहते हैं कि if I submit sales tax on accrual basis but the payment of that particular goods or services got bad debt, please tell us the treatment। ट्रीटमेंट बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, हम आगे जाएंगे, इस चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे कि अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर डेफिनेटली हमें क्रेडिट्स मिलेंगे कुछ। ओके, राशिद हनीफ साहब आप कहते हैं कि सेल्स टैक्स एवरी मंथ, तो राशिद साहब मुझे थोड़ा सा आगे जाने दें, हर क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल सेल्स टैक्स हर मंथ पे करना पड़ता है, कब पे करना पड़ता है ये हम देखते हैं आगे। वैल्यू ऑफ सप्लाई पे हम आ जाते हैं कि वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो क्या कंसिडर की जाएगी। ठीक है, नॉर्मल केस में वैल्यू क्या होगी, कंसिडरेशन इन मनी इंक्लूडिंग ऑल फेडरल एंड प्रोविंशियल ड्यूटीज विद द सप्लायर रिसीव्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई एक्सक्लूडिंग अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स। ठीक है, कि जो भी पैसे आपको रिसीव हो रहे हैं उसमें सारी ड्यूटीज ऐड कर लो, सेल्स टैक्स ऐड नहीं करना, एफईडी है ऐड कर लो, कस्टम ड्यूटी है ऐड कर लो, कोई और ड्यूटी है ऐड कर लो। तो अगर आपकी 100 रुपीज जो है वो प्राइस है गुड की, उसके अंदर 10 रुपीज एफईडी ऐड हुआ है, 5 रुपीज कस्टम ड्यूटी ऐड हुई है, तो आपने 115 रुपीज के ऊपर सेल्स टैक्स पे करना होगा। तो नॉर्मल केस में वो कंसिडरेशन जो आपको रिसीव हो रही है इंक्लूडिंग प्रोविंशियल एंड फेडरल ड्यूटीज, वो सारी ऐड करने के बाद जो वैल्यू बन जाएगी उस वैल्यू के ऊपर सेल्स टैक्स ऐड किया जाएगा। ये वैल्यू ऑफ सप्लाई है और इसी वैल्यू के ऊपर जो है वो सेल्स टैक्स चार्ज किया जाता है। फिर आगे मजीद एक्सप्लेन कर दिया कि मार्कअप ऑन क्रेडिट सेल्स शैल नॉट बी टेकन इनटू वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर आप मार्कअप चार्ज कर रहे हैं क्रेडिट सेल पे, आपने सेल की, आपने अपने सप्लायर बायर को कह दिया कि अगर आपने 3 मंथ्स में मुझे पेमेंट नहीं की तो आपको मुझे इतना % पे करना पड़ेगा एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वैल्यू होगी वो वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं होगी, कंसिडर नहीं की जाएगी और उसके ऊपर आपने कोई सेल्स टैक्स पे नहीं करना। जो आपकी इनिशियल वैल्यू है गुड्स की, आपने सिर्फ उस वैल्यू के ऊपर सेल्स टैक्स पे करना होगा। ओके, जिशान असलम साहब, हाउ सेल्स टैक्स विदहेल्ड बाय कस्टमर बी ट्रीटेड इन सेल्स टैक्स। मैं अभी इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिशान साहब। मैं एक इलस्ट्रेशन और एग्जांपल परफॉर्म करूंगा एक्सेल में, आपको उसमें सारी समझ आ जाएगी किस तरीके से इनपुट और आउटपुट टैक्स को कंसीडर किया जाता है, कैसे सेल्स टैक्स चार्ज किया जाता है, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये आइडिया। जस्ट लेट मी गो थ्रू द डेफिनेशंस फर्स्ट, उसके बाद मैं इस तरफ आ रहा हूँ। ओके, कंसिडरेशन इज पार्टली और फुली इन काइंड। अगर इन काइंड हो तो फिर क्या है, ओपन मार्केट प्राइस, जो भी ओपन मार्केट प्राइस है उस इन काइंड वैल्यू की, ठीक है, उसमें से सेल्स टैक्स निकाल के आपने उसके ऊपर सेल्स टैक्स पे करना है। सेल्स इज मेड ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस वेयर द प्राइस इंक्लूड मार्कअप और सरचार्ज। अगर इंस्टॉलमेंट बेसिस पे सेल्स टैक्स सेल जो है वो हो रही है तो फिर क्या होगा, ओपन मार्केट प्राइस एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स, आपने ओपन मार्केट प्राइस के ऊपर ही सेल्स टैक्स जो है वो पे करना है। अगेन उसमें से मार्कअप आपने एक्सक्लूड कर देना है, ठीक है, या सरचार्ज आपने एक्सक्लूड कर देना है, क्योंकि सरचार्ज या मार्कअप जो है वो सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स एक्ट नहीं है। अगर सप्लाई जो है वो एसोसिएटेड पर्संस के दरमियान में हो रही हो तो फिर क्या होगा, जो भी नॉर्मल केस में रूल अप्लाई होता है, या ओपन मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, जो भी वैल्यू हायर होगी, यानी कि मार्केट में जो वैल्यू है और जो आपस में ये सेल परचेज कर रहे हैं, जो भी वैल्यू हायर होगी उस वैल्यू के ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज किया जाएगा। इंपोर्टेड आइटम्स को थोड़ा सा समझना है हमें कि इंपोर्टेड आइटम्स के ऊपर जो है वो किस तरीके से सेल्स टैक्स चार्ज किया जाएगा। इंस्टॉलमेंट बेसिस का मतलब ये है कि आप जो है टुकड़ों में पेमेंट कर रहे हैं, आपने गुड परचेज कर लिया, ठीक है, उसके बाद आप जो है उसको मंथली आपके पास एक शेड्यूल मौजूद है, आप उस शेड्यूल के हिसाब से पीस मील बेसिस पे पेमेंट कर रहे हैं। इंस्टॉलमेंट का मतलब ये है। अच्छा, इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स को अगर हम देखें कि इंपोर्टेड गुड्स को हमने कैसे लेके चलना है, जब भी हम आइटम इंपोर्ट करते हैं हमें जो है एक जीडी
मिलती है तो अक्सर गुड डिक्लेरेशन जो हमें रिसीव होती है उसके ऊपर जो है इनकम टैक्स उसके ऊपर सेल्स टैक्स कैसे चार्ज किया जाता है, इस चीज को जो है वो देखना जरा हम मैंने इनकम टैक्स के अंदर भी बताया था कि इनकम टैक्स कैसे चार्ज किया जाएगा, इसी तरह यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सेल्स टैक्स कैसे चार्ज होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने स्टार्ट ये लेना है कि वो वैल्यू जो उस आइटम की कस्टम अथॉरिटीज डिटरमिन कर रही है। एक आइटम मैंने बाहर से परचेज किया, ठीक है, लेट्स से कस्टम अथॉरिटी ने कहा कि इस आइटम की वैल्यू सिर्फ 1000 रुपीज है। कितनी? 1000 उस आइटम की वैल्यू। एग्जाम्पल अगर हम देख लें साथ ही कि द वैल्यू ऑफ द रॉ, फॉर एग्जाम्पल कोई रॉ मटेरियल मैंने इंपोर्ट किया, उसकी वैल्यू कस्टम अथॉरिटीज की नजर में 1000 है। तो कस्टम अथॉरिटी सेल्स टैक्स कैसे चार्ज करेगी? वो सबसे पहले ऐड करेगी कस्टम ड्यूटी 20%। ठीक है, अगर आप इलस्ट्रेशन देख लें, ₹1000 प्लस कस्टम ड्यूटी 20% यानी कि 200 इज इक्वल टू ₹1200। 1200 आपके पास कस्टम ड्यूटीज ऐड करने के बाद आ गए। उसके बाद अगला स्टेप होता है एफईडी। एफईडी जो है लॉ कहता है इस रॉ मटेरियल के ऊपर 10% है। तो अब कस्टम अथॉरिटीज कैसे कैलकुलेशन करेगी? वो 1200 का 10% लेगी, एफईडी जो कि 120 बनते हैं, वो 1200 में ऐड कर देंगी। हमारे पास वैल्यू कितना आ गया? 1320। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा सेल्स टैक्स। ठीक है, अब 1320 के ऊपर लगाया जाएगा 17% सेल्स टैक्स। इसका मतलब है कि सेल्स टैक्स किस वैल्यू पे लग रहा है? इंक्लूसिव ऑफ कस्टम ड्यूटी एंड एफईडी, यानी कि सारी ड्यूटीज ऐड करने के बाद हम लोग सेल्स टैक्स जो है वो लगा रहे हैं 17%, जो कि कितना है? 224। जब हमने वो लगा दिया तो उसके बाद 224 जो है हमारे पास 1320 में ऐड कर लिए जाएंगे। जब 1320 में 224 ऐड हो जाएंगे तो उसके बाद कस्टम अथॉरिटीज क्या चार्ज करेगी? इनकम टैक्स। तो इसका मतलब है वैल्यू प्लस कस्टम ड्यूटी, उसके बाद जो वैल्यू आती है प्लस एफईडी, उसके बाद जो वैल्यू आती है उसके ऊपर सेल्स टैक्स, एंड देन सेल्स टैक्स ऐड करने के बाद इनकम टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो ये जो है हमारा प्रोसीजर है इंपोर्टेड आइटम्स का, कि इंपोर्टेड आइटम्स के ऊपर सेल्स टैक्स कैसे चार्ज होता है। अच्छा, मुजफ्फर अली शेख साहब कहते हैं फार्मा इंडस्ट्री जो है क्या स्टेटस है? फार्मा इंडस्ट्री जो है वो सेल्स टैक्स से एग्जेम्प्ट है। ठीक हो गया। अच्छा, प्रोवाइडिंग एजुकेशन, मोहम्मद दानिश साहब कहते हैं इज आल्सो अ सर्विस प्रोवाइडिंग बाय द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इट इज आल्सो लायबल फॉर सेल्स टैक्स। एजुकेशन ये सर्विस है, मैं दोबारा कहूंगा ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। मैं प्रोविंशियल सेल्स टैक्स एक्ट पे आऊंगा जब, तो हम इसको वहां पर देख लेंगे। लेकिन एजुकेशन क्योंकि सेकंड शेड्यूल में मेंशन नहीं है तो मैं आपको अभी से बताता जाऊं कि इट इज नॉट अ टैक्सेबल एक्टिविटी। ओके, देन हम आ जाते हैं एग्जेम्प्ट गुड्स सप्लाइड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन फॉर प्रोसेसिंग। ठीक है, अगर एग्जेम्प्ट गुड्स जो है आप सप्लाई करें रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोसेसिंग के लिए तो मार्केट प्राइस, तो उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? वही मार्केट प्राइस सेल्स टैक्स निकालने के बाद। ठीक है, क्योंकि देखो एग्जेम्प्ट गुड्स जो होते हैं उसके लिए सेल्स टैक्स इनवॉइस इशू करना लाजमी नहीं है। तो फिर हम क्या करें, कौन सी प्राइस को हम ले? तो उसके लिए वो कहता है कि जो भी मार्केट प्राइस होगी आपने उस प्राइस को कंसीडर करना है, वो एग्जेम्प्ट गुड्स के लिए मार्केट प्राइस कंसीडर की जाएगी। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता जाऊं कि ट्रेड डिस्काउंट जो है, ट्रेड डिस्काउंट वो आपने एक्सक्लूड करना है। ठीक है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल इनवॉइस के ऊपर 100 रुपीज प्राइस आ रही है, 5% डिस्काउंट दिया, ट्रेड डिस्काउंट दिया, नॉट सेटलमेंट डिस्काउंट। सेटलमेंट डिस्काउंट पे कोई आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलती। 5% आपने जो है वो ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है, तो इसका मतलब है सेल्स टैक्स किस वैल्यू पे चार्ज होगा? 100 पे चार्ज नहीं होगा, 95 के ऊपर चार्ज होगा, क्योंकि लॉ कहता है कि ट्रेड डिस्काउंट शैल बी एक्सक्लूड प्रोवाइडेड। कंडीशंस बता दी, दो कंडीशंस हैं कि द टैक्स इनवॉइस शोज द डिस्काउंट प्राइस, के इनवॉइस के ऊपर डिस्काउंट मेंशन हो। दूसरी बात, द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज इन कंफर्मिटी विद द नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस। ये ना हो कि बाकी कोई तो डिस्काउंट नहीं दे रहा लेकिन आप बहुत हैवी डिस्काउंट दे रहे हैं 25%, 30%, तो इट इज क्लियर कि जो है आप कोई फ्रॉड कर रहे हैं। इतना डिस्काउंट मार्केट में नहीं दिया जाता लेकिन आप दे रहे हैं, नॉर्मल से ज्यादा दे रहे हैं, और आपकी प्रैक्टिस भी नहीं है, पहले कभी नहीं दिया, किसी एक बायर को दे रहे हैं बाकी किसी को नहीं दे रहे। तो कंडीशंस जो है वो लाजमी है कि एक तो इनवॉइस में मेंशन हो, दूसरा नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस कंसीडर की जाए। तो फिर आपने ट्रेड डिस्काउंट को वैल्यू ऑफ सप्लाई में से माइनस कर देना है, डिडक्ट कर देना है, उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर आपने सेल्स टैक्स चार्ज करना है। अदनान साहब कहते हैं कि अदनान खान साहब कहते हैं कि प्लीज एक्सप्लेन व्हाई वी नीड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई हमने इसीलिए फाइंड आउट करनी है क्योंकि हमने सेल्स टैक्स वैल्यू पे चार्ज करना है। अगर हमें वैल्यू नहीं पता होगी तो हम सेल्स टैक्स किस बात पे चार्ज करेंगे? ये इसी तरह करता हूं। ठीक हो
गया। तो हम जो है किस चीज पे हम सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे अगर हमें वैल्यू नहीं पता होगी? अच्छा, सुमैया फातिमा साहिबा का क्वेश्चन है कि if a commercial importer sells those goods then he applies at 17% tax when a buyer pays for it, how will it be treated since sales tax is already paid? सुमैया साहिबा मैं आता हूँ इस चीज पे, मैं एक इलस्ट्रेशन पे आ रहा हूँ। आई थिंक मुझे उस इलस्ट्रेशन को पहले कर लेना चाहिए क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद हम अपनी डेफिनेशंस भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? मैं एक्सेल शीट पे आ गया हूँ, ठीक है? इस चीज को गौर से देखिएगा कि किस अंदाज में जो है वो सेल्स टैक्स की एडजस्टमेंट्स की जाती हैं। ये एक एग्जांपल है, ठीक है? ये ट्रांजैक्शंस, ठीक है? ये वैल्यू आइटम, मार्जिन्स, ये मार्जिन का मतलब है प्रॉफिट मार्जिन, टोटल इनपुट टैक्स जो बायर पे कर रहा है, आउटपुट टैक्स जो सप्लायर चार्ज कर रहा है, एफबीआर को कितना पे करना है, फर्दर टैक्स को हम बाद में देखेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस इलस्ट्रेशन को गौर से अंडरस्टैंड कीजिएगा क्योंकि ये बहुत इश्यूज मैंने देखे हैं कि आ रहे हैं कि किस तरीके से एडजस्टमेंट्स करनी है। फॉर एग्जांपल एक इंपोर्टर एक आइटम इंपोर्ट करता है, उस आइटम की इंपोर्ट वैल्यू है 9200, 9200 आइटम की इंपोर्ट वैल्यू है, ठीक है? इस इंपोर्टर ने इंपोर्ट करते हुए कस्टम अथॉरिटीज को जो टैक्स पे किया वो 1564 है। 1564 वो टैक्स है जो इंपोर्टर ने पे कर दिया कस्टम अथॉरिटीज को। इसका मतलब इस इंपोर्टर के लिए इनपुट टैक्स कितना हुआ? 1564। ये इसका इनपुट टैक्स हो गया क्योंकि ये पे कर चुका है। अब क्वेश्चन आ रहा है कि जी एडजस्टमेंट क्या होगी, एडजस्टमेंट कैसे होगी? फॉर एग्जांपल यही इंपोर्टर 1800 का मार्जिन ऐड करता है इस आइटम के ऊपर, 9200 के ऊपर 1800 का मार्जिन ऐड करता है, टोटल वैल्यू क्या बन जाती है? 11000। 11000 की ये सेल करने जा रहे हैं। याद रखना 9200 के अंदर इनपुट टैक्स शामिल नहीं है, ये सिर्फ वैल्यू है। क्वेश्चन आया था वैल्यू क्यों डिटरमिन की जाती है? वैल्यू सेल्स टैक्स चार्ज करने के लिए डिटरमिन की जाती है। 9200 it is purely a value related to the item excluding sales tax. इंपोर्टर ने अपना मार्जिन 1800 का ऐड कर दिया, टोटल वैल्यू 11000 बन गई। अब 11000 पे ये सेल करने जा रहा है इंपोर्टर, तो इंपोर्टर क्या करेगा? he is going to charge 17% sales tax on the value 11000। 11000 के ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज होता है। अगर आप 11000 पे सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे तो ये बन जाता है 1870। दिस विल बी कॉल्ड आउटपुट टैक्स। ये हमारा आउटपुट टैक्स है। अगर आप देखें कि आउटपुट टैक्स जो कलेक्ट करना है इंपोर्टर ने बायर से, वो इसने कलेक्ट कर लिया, ठीक है? और इनपुट टैक्स ऑलरेडी कस्टम अथॉरिटीज को कितना पे किया हुआ था? 1564। इन दोनों का डिफरेंस ले ले तो जो भी डिफरेंस आएगा वो इस इंपोर्टर ने सेल करते हुए एफबीआर को पे करना है। दिस इज कॉल्ड इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट, कि जितनी पेमेंट वो कस्टम अथॉरिटीज को सेल्स टैक्स की कर चुका है वो सारी की सारी इसको कलेक्शन के वक्त एडजस्टमेंट मिल रही है, क्योंकि सेल्स टैक्स का मकसद ही कंज्यूमर से कलेक्ट करना है, ठीक है? इंपोर्टर कंज्यूमर नहीं है, वो आइटम परचेज करता है, इंपोर्ट करता है, उसके बाद सेल कर देता है। इंपोर्ट के ऊपर जितना सेल्स टैक्स कलेक्ट हुआ, सेल करते हुए सेल्स टैक्स की कलेक्शन में से वो इनपुट टैक्स माइनस कर लिया जाएगा और डिफरेंस जो है 306 का वो गवर्नमेंट को पे कर दिया जाएगा। अगर हम गौर से देखें तो इस इंपोर्टर की जेब से कोई सेल्स टैक्स नहीं गया, जो पे किया था उसकी एडजस्टमेंट मिल गई और जो एक्सेस कलेक्ट किया था 306 वो सारा का सारा गवर्नमेंट को पे कर दिया गया। इस यहां तक अगर इंपोर्टर में कोई इश्यू है तो प्लीज आस्क। इसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगा होलसेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ। इफ हैव एनी क्वेरी, ठीक है, रिगार्डिंग इंपोर्टर्स, जो मैंने अभी कैलकुलेशन बताई कि इनपुट आउटपुट टैक्स की एडजस्टमेंट कैसे होगी, आप ये क्वेश्चन यहीं पर क्लियर कर ले ताकि मैं इसको फिर आगे लेके, क्योंकि मैं इस एग्जांपल को कंटिन्यू करूंगा। इंपोर्टर ने 9200 का आइटम इंपोर्ट किया, अपना मार्जिन ऐड किया, 11000 सेल प्राइस बन गई। सेल प्राइस, दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ सप्लाई। 11000 इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। इस वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर 17% आउटपुट टैक्स चार्ज हुआ। इनपुट टैक्स जो पे किया था इंपोर्टर ने 1564 का, वो एडजस्ट हुआ, रिमेनिंग गवर्नमेंट को पे हो गया। अब लेट्स से इस इंपोर्टर ने ये 11000 का आइटम होलसेलर को सेल कर दिया। किसको सेल कर दिया? होलसेलर को। होलसेलर ने 11000 का आइटम परचेज किया। अगेन मैं कहूंगा इसके अंदर सेल्स टैक्स शामिल नहीं है, ठीक है? अपना मार्जिन ऐड किया। एक क्वेश्चन आया है, देख लेते हैं।
जी बिल्कुल दानिश साहब, इसी तरह होगा। कस्टम ड्यूटी और एफईडी इस वैल्यू के अंदर ऐड होगी, वैल्यू ऑफ द आइटम के अंदर कस्टम ड्यूटी और एफईडी ऐड है, ठीक हो गया, वो एडेड है, लेकिन हम उसको हाईलाइट नहीं कर रहे क्योंकि जरूरत नहीं है, हमने टोटल वैल्यू ऑफ द आइटम देखनी है। जी अब्दुल जब्बार जफर साहब आप कहते हैं इनपुट टैक्स का मतलब जो सेल्स टैक्स इंपोर्टर पे कर चुका है, बिल्कुल सिर्फ सेल्स टैक्स जो इंपोर्टर पे, नॉट ड्यूटीज, ड्यूटी शामिल नहीं है इसके अंदर, सिर्फ वो सेल्स टैक्स जो इंपोर्टर पे कर चुका है सिर्फ वो शामिल है। 9200 के अंदर जमाल साहब एफईडी और कस्टम ड्यूटी वी अज्यूम के शामिल है, ठीक है, उसका हमें क्योंकि हमें उसकी इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट नहीं मिलनी तो हम उसकी तरफ जा नहीं रहे। ओके ऑल राइट, होलसेलर ने 11,000 का आइटम परचेज किया, 600 का अपना मार्जिन ऐड किया, 11,600 होलसेलर के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई बन गई, जो इसने आगे सेल करनी है मैन्युफैक्चरर को। किसको सेल करनी है? मैन्युफैक्चरर को, जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग करेगा, ठीक हो गया। अब क्या करेगा, होलसेलर ने जो टैक्स पे किया था, देखिए इंपोर्टर का आउटपुट टैक्स 1870, होलसेलर के लिए क्या हो गया, इनपुट टैक्स हो गया 1870, तो ये आउटपुट टैक्स इंपोर्टर का, 1870 होलसेलर के लिए इनपुट टैक्स कंसीडर कर लिया गया। अब होलसेलर क्या करता है, 11,000 वैल्यू ऑफ द आइटम जो परचेज की, उसके अंदर अपना मार्जिन 600 ऐड किया, 11,600 वैल्यू ऑफ सप्लाई बन गई, इसके ऊपर 17% दोबारा से चार्ज करेगा, ठीक है। जब वो 17% चार्ज करेगा तो उसके लिए आउटपुट टैक्स होलसेलर के लिए कितना हो गया, 1972। 1870 ये इंपोर्टर को पे कर चुका है, 1970 ये मैन्युफैक्चरर से कलेक्ट करेगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 102 होगा, वो एफबीआर को पे कर देगा। क्लियर? कोई क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड है तो प्लीज साथ साथ पूछते जाए, क्योंकि ये एग्जांपल आगे फर्दर एक्सटेंड होगी। बिलाल अवान साहब पूछते हैं कि अगर कमर्शियल इंपोर्टर जो है वो पे कर देता है इंपोर्ट स्टेज पे टाइम एट द टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है, तो क्या इज इट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स? नहीं, अगर वो कमर्शियल इंपोर्टर पे कर रहा है गवर्नमेंट को टैक्स, ठीक है, तो जब वो सप्लाई करेगा तो उसने फिर से चार्ज करना है, जो हमने फर्स्ट स्टेज में देखा। मोहम्मद दानिश साहब आप कह रहे हैं कि एफबीआर क्या अलाउ करता है? जी बिल्कुल अलाउ करता है, ड्यूटीज ऐड करने के बाद ही सेल्स टैक्स चार्ज किया जाता है। एग्जैक्टली राशिद अनीफ साहब, ड्यूटीज विल बी एडेड, लेकिन ड्यूटीज देखिए सिर्फ इंपोर्ट स्टेज के ऊपर ऐड हो रही है, लोकल सेल में तो हम ना एफईडी ऐड कर रहे हैं ना कस्टम ड्यूटी ऐड कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर है नहीं, ठीक है। तो 9200 जो मैंने इंपोर्ट के स्टेज पे बताए हैं उसके अंदर ड्यूटीज इंक्लूडेड है, वी अज्यूम कि ड्यूटीज इंक्लूडेड है। अच्छा ननीता आप पूछ रही हैं कि आउटपुट टैक्स रिसीवेबल फ्रॉम मैन्युफैक्चरर विल बी कंसीडर्ड सेपरेटली फ्रॉम वैल्यू। देखिए जो आउटपुट टैक्स मैन्युफैक्चरर से मिला वो वैल्यू के ऊपर ही चार्ज किया है, उसको हमने अलग से शो किया हुआ है ताकि हम इनपुट उसमें से एडजस्ट कर सके कि कितना हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, ठीक है। वो इनपुट टैक्स जब हम एडजस्ट कर लेंगे, जो डिफरेंस होगा वो हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे। ओके इफ्तिखार साहब कह रहे हैं कमर्शियल इंपोर्टर इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम सेल्स टैक्स विदहोल्डिंग। इफ्तिखार साहब मैं सेल्स टैक्स विदहोल्डिंग पे जब आऊंगा स्पेशल प्रोसीजर रूल्स 2007 विदहोल्डिंग के, वहां पर हम इस चीज को एक्सप्लेन कर देंगे। अब्दुल जब्बार साहब कह रहे हैं 90% ऑफ इनपुट क्लेम इन विच केसेस। अब्दुल जब्बार साहब लेट मी कम टू सेक्शन 8B, जब मैं सेक्शन 8B पे आऊंगा मैं 90% की एडजस्टमेंट एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहाँ पर हम वी आर टॉकिंग अबाउट अ बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम इन डेप्थ नहीं जा रहे हैं, जितना हम आगे जाएंगे हम चीजों की डेप्थ में जाते रहेंगे और हर टॉपिक को इंडिविजुअली हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे ताकि आपको समझ आए। अगर मैं सारी चीजों को यहाँ इस एग्जांपल में इनकॉर्पोरेट कर दूंगा, थिंग्स विल गेट डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके ऑलराइट, इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट और आउटपुट। अच्छा समीरा पूछ रही है कि प्लीज एक्सप्लेन इनपुट टैक्स फॉर होलसेलर 1870। ओके ये मैं आपको बता देता हूँ। आई थिंक इस एग्जाम्पल से रिलेटेड मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आया, ये लास्ट क्वेश्चन जो अभी आया है समीरा का, वो पूछ रही है कि प्लीज एक्सप्लेन इनपुट टैक्स फॉर होलसेलर 1870। ओके 1870 कैसे आया? देखें होलसेलर ने जो परचेज की इंपोर्टर से कितने की परचेज की, इस चीज पे हम क्लियर है, 11,000 की परचेज की, ये वैल्यू है। वैल्यू कब आई? सेल्स टैक्स निकाल के, ठीक है। 600 इसने अपना मार्जिन ऐड किया, ठीक है। अगर हम देखें तो होलसेलर से जब 11,000 की परचेज की गई है,
तो सिर्फ 11,000 तो पे नहीं किया ना इंपोर्टर को। इंपोर्टर को 2 आइटम्स पे हो रहे हैं, एक हम 11,000 वैल्यू पे कर रहे हैं, दूसरा इसी 11,000 के ऊपर सेल्स टैक्स जो कि कितना बनता है 1870, हम ये पे कर रहे हैं। तो इसका मतलब है टोटल पेमेंट होलसेलर इंपोर्टर को कितनी कर रहा है, 12,870 की टोटल पेमेंट जा रही है। इस टोटल पेमेंट में 11,000 जो है वो वैल्यू है, कॉस्ट ऑफ द गुड है, ठीक है, और 1870 जो है वो सेल्स टैक्स है जो उस परचेज के ऊपर पे करना पड़ रहा है। जब होलसेलर 1870 सेल्स टैक्स पे कर देता है तो इसका मतलब है कि ये 1870 इस होलसेलर के लिए इनपुट टैक्स होगा, ठीक है। अब इसी होलसेलर ने क्या करना है, 11,000 में अपना मार्जिन ऐड करना है 600 का। जब 600 का मार्जिन ऐड कर देता है तो 11,600 बन जाता है। इसके ऊपर सेल्स टैक्स मजीद चार्ज करेगा जो कि 1972 होगा, और इन दोनों का डिफरेंस जो भी आएगा अपनी एडजस्टमेंट लेने के बाद वो एफबीआर को पे कर देगा। एग्जैक्टली मोहम्मद यूसुफ साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। every additional tax on margin is value addition, this is called value, that's why it is called value addition tax, ठीक हो क्या। हर वैल्यू ऐड होने के साथ टैक्स भी ऐड होता जा रहा है। अमित कुमार साहब कहते हैं कि if it's purely VAT concept then why we called, इसको सेल्स टैक्स कहा जाता है लेकिन हमारा सेल्स टैक्स सिस्टम जो है वो वैट बेस्ड सिस्टम है, वैल्यू एडिशन बेस्ड सिस्टम है। अच्छा, राशिद हनीफ साहब कहते हैं हाउ डू यू कैलकुलेट 1564। राशिद हनीफ साहब यहाँ पर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 9200 के ऊपर इन्होंने ऑलरेडी जो है 1564 इनपुट टैक्स पे कर दिया है, वो ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा देख लेना, अगर आप कहते हैं कि जी फिर भी ये कैसे आया, नहीं मुझे इसको समझना है, तो देखिए इज इक्वल टू 9200 मल्टीप्लाई बाय 17%, 1564, ठीक है। इट्स 17% स्टैंडर्ड रेट जो कि 17% है हमारा, ठीक है। हमारा जो स्टैंडर्ड रेट है वो 17%। अब 9200 के अंदर जो है वो कस्टम ड्यूटीज भी शामिल है, एफईडी भी शामिल है, हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए थी। हमने वैल्यू उठाई, उसके ऊपर 17% लगाया, वो हमारा इनपुट टैक्स आ गया, हमने गवर्नमेंट को पे कर दिया, ठीक है। उसके बाद जब हम सेल करने जा रहे हैं अपना मार्जिन ऐड करेंगे वैल्यू में और उसके ऊपर आउटपुट टैक्स चार्ज कर देंगे। आई थिंक ये एग्जाम्पल हम कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो ये होलसेलर वाला कॉन्सेप्ट भी, अब होलसेलर आगे किसको बेच रहा है हम ये देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरर को सेल कर रहा है, ठीक है। जब मैन्युफैक्चरर को सेल करेगा तो मैन्युफैक्चरर ने वो आइटम कितने का परचेज किया, मैन्युफैक्चरर ने वो आइटम परचेज किया 11,600 का, 11,600 का उसने आइटम परचेज किया। इसके बाद जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या करता है, वो अपने एक्सपेंसेस जो हैं 9,000 के एक्सपेंसेस ऐड कर देता है क्योंकि डेफिनेटली उसकी कॉस्ट आएगी 9,000 के एक्सपेंसेस प्लस अपना मार्जिन 3,000 का, ये दो चीजें उसने ऐड कर दी, ठीक है। 9,000 का एक्सपेंसेस एंड 3,000 का मार्जिन। इसका मतलब है कि अब वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या बनेगी, वैल्यू प्लस मार्जिन और एक्सपेंसेस को ऐड कर लें 23,600। अब ये मेरे पास वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाती है, ठीक है। इस मैन्युफैक्चरर ने इनपुट टैक्स कितना पे किया था, जो होलसेलर ने आउटपुट टैक्स चार्ज किया था। होलसेलर ने जो आउटपुट टैक्स चार्ज किया है वो मैन्युफैक्चरर ने इनपुट टैक्स पे कर दिया है। तो इनपुट टैक्स तो मैं मैन्युफैक्चरर का क्लियर हो गया। आउटपुट टैक्स कैसे हम ऑब्टेन करेंगे, 23,600 मल्टीप्लाई बाय 17% अगेन, तो ये 4012 मेरे पास आउटपुट टैक्स आ गया, जो मैन्युफैक्चरर ने जब आगे होलसेलर को सेल करेगा तो उस होलसेलर से 4012 कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करने के बाद मैन्युफैक्चरर ये देखेगा कि मैंने जो है परचेज के वक्त कितना इनपुट टैक्स पे किया, तो वो देखेगा कि जी 1972 तो मैं पे कर चुका हूं, उसकी एडजस्टमेंट लेगा और डिफरेंस उठा के जो है वो एफबीआर को पे कर देगा। इस पॉइंट में मैन्युफैक्चरर के पॉइंट में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क कि हम इसको क्लियर करते हुए आगे जाएं। ओके, ऑलराइट, हम एक कॉलम और ले लेते हैं, टोटल इनवॉइस वैल्यू। हम टोटल इनवॉइस वैल्यू का एक कॉलम और ले लेते हैं।
इस केस में टोटल इनवॉइस वैल्यू क्या होगी 11,000 प्लस आउटपुट टैक्स। ठीक हो गया। इस केस में इनवॉइस वैल्यू क्या होगी 11,600 प्लस आउटपुट टैक्स। ठीक है, इस केस में इनवॉइस वैल्यू क्या होगी 23,600 प्लस आउटपुट टैक्स। ये टोटल इनवॉइस वैल्यूज आ रही है हमारे पास। ठीक हो गया। कोई सवाल मैन्युफैक्चरर की हद तक प्लीज आस्क ताकि हम आगे चलें। अच्छा, मोहम्मद दानिश साहब कहते हैं कि अगर रिटर्न, मोहम्मद दानिश साहब आप क्वेश्चन काफी दफा पोस्ट कर चुके हैं, आई अंडरस्टैंड। मैं इसको इसलिए नहीं आंसर कर रहा था क्योंकि हमने डेबिट और क्रेडिट नोट्स आगे पढ़ने हैं कि डेबिट और क्रेडिट नोट्स को कैसे हम डील करेंगे कि अगर रिटर्न हो जाता है, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे इनपुट टैक्स के साथ। तो जस्ट रिलैक्स, हम उस चीज पर आ रहे हैं जब हम उस साइड, पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, आप फ्यूचर से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर मत कीजिए, हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को खुद क्लियर हो जाएंगे। प्लीज ट्राई टू बिलीव मी। अमित कुमार साहब कहते हैं एक्स्ट्रा टैक्स और फर्दर टैक्स एक्सप्लेन करो, इंक्लूड करो। मैं इसको इंक्लूड नहीं कर रहा। इसके बाद मैं एक और एग्जांपल कराऊंगा, जब मैं फर्दर टैक्स का कॉन्सेप्ट समझा दूंगा फिर मैं उस एग्जांपल पे आऊंगा। अच्छा, वसीम रहमान साहब कहते हैं कि मैन्युफैक्चरर ने किस प्राइस पे पे करना है। मैन्युफैक्चरर ने रिटेल प्राइस पे नहीं करना। मैन्युफैक्चरर जो टैक्सेबल वैल्यू आई है, टैक्सेबल वैल्यू हमारे पास क्या आई है 23,600, इसके ऊपर जितना भी सेल्स टैक्स है 4,012, ये उठा के पे कर देना है उसने। ठीक है, आई थिंक मैन्युफैक्चरर का कॉन्सेप्ट भी हमें क्लियर हो गया। अब मैन्युफैक्चरर आगे मजीद सेल कर रहा है होलसेलर को। ठीक है, वैल्यू क्या आएगी मैन्युफैक्चरर के लिए 23, होलसेलर के लिए 23,600 का इसने परचेज किया। इस 23,600 की जो परचेज की, तो इनपुट टैक्स कितना पे किया 4012। जो मैन्युफैक्चरर का आउटपुट टैक्स है वो होलसेलर का इनपुट टैक्स होगा। फिर अपना मार्जिन ऐड करने लगा। जब अपना मार्जिन जो है ऐड किया, वो कितना किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल अपना मार्जिन 400 ऐड कर देते हैं। 400 अपना मार्जिन ऐड किया, वैल्यू ऑफ सप्लाई आ गई। वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी आ गई 24,000। एक मिनट, ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई 24,000 आ गई। इस 24,000 के ऊपर क्या चार्ज किया जाएगा, आउटपुट टैक्स चार्ज किया जाएगा 17%। ठीक है, इसका मतलब है टोटल इनवॉइस वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस आउटपुट टैक्स। इन दोनों को ऐड कर लें अगर हम, तो हमारे पास टोटल इनवॉइस वैल्यू आ गई। गवर्नमेंट को कितना पे करना है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, 68 रुपीज जो है वो गवर्नमेंट को पे कर देने हैं। होपफुली ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट में जा रहा हूं, इसको एग्जांपल को कंक्लूड कर रहा हूं कि होलसेलर आगे रिटेलर को जब सेल करेगा तो फिर क्या सिचुएशन होगी, रिटेलर जो है वो कितना चार्ज करेगा कंज्यूमर को। ऑलराइट, ओके जमाल, 4012 मैंने सही कॉलम में कर दिया। ओके, अल्टीमेटली हम रिटेलर पे आ जाते हैं, इसको हम कंक्लूड कर रहे हैं। रिटेलर ने जो है वो आइटम कितने का परचेज किया 24,000 वैल्यू थी। ठीक है, उसके ऊपर अपना मार्जिन 600 ऐड कर दिया। ठीक हो गया, 600 मार्जिन ऐड कर दिया, टोटल वैल्यू आ गई 24,600। यही रिटेलर इनपुट टैक्स कितना पे करके आया 4080। ऑलराइट, आउटपुट टैक्स कितना चार्ज करेगा, वैल्यू के ऊपर चार्ज करेगा 4182। टोटल इनवॉइस वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस आउटपुट टैक्स, ये टोटल सप्लाई इनवॉइस वैल्यू होगी। गवर्नमेंट को कितना पे करना है, दिस माइनस दिस। अगर हम देखें तो गवर्नमेंट को जो टोटल पेमेंट होनी चाहिए थी वो ये होनी चाहिए थी, ये गवर्नमेंट को टोटल पेमेंट होनी चाहिए थी 4182। अब इसको लेकिन टुकड़ों में पे किया गया, ये वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट है। अगर आप इन सबको टोटल कर लेंगे तो आपके पास, ठीक है, यहां पर हमने एक कॉलम मुझे ऐड करने दें। ठीक है, कि इंपोर्टर ने टैक्स कितना गवर्नमेंट को पे किया था 1564। ये इनपुट टैक्स था जो इंपोर्टर ने गवर्नमेंट को पे किया था। अगर हम इन प्रोसेसेस को देखें, इस वैल्यू एडिशन के कॉन्सेप्ट को देखें, और अगर मैं इन सबको टोटल करूं
ठीक है, तो मेरे पास एग्जैक्टली वही अमाउंट बनेगा जो अल्टीमेटली रिटेलर ने कंज्यूमर से कलेक्ट किया 4182, और ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं। तो इसका मतलब टोटल जो 4182 टैक्स था, आउटपुट टैक्स जो रिटेलर ने कंज्यूमर से कलेक्ट करना था, वो पीस मील बेसिस में जो है वो गवर्नमेंट को पे होता रहा है। इसी को वैल्यू एडिशन टैक्स का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। आई होप कि आप लोगों को ये एग्जांपल समझ आ गई होगी। या मोहम्मद अदील साहब, हम बिल्कुल विद होल्डिंग टैक्सेस को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ऑलराइट, वहां पर हम देख लेंगे कि विद होल्डिंग टैक्सेस के साथ कैसे चलना है। वलीद भट्ट साहब, आप पूछ रहे हैं कि अगर अनरजिस्टर्ड होता, मैं इस पर भी आऊंगा, मुझे सेक्शन 3 कंप्लीट करने दें, उसके बाद मैं एक और इलस्ट्रेशन करवाऊंगा, वहां पर मैं फर्दर टैक्स के कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन करूंगा कि उस केस में क्या सिचुएशन होनी है। अच्छा, मुझसे मुझसे ये पूछा जा रहा है कि जी ये जो 12,000 मैंने ऐड किया है ना, अगर हम देखें तो इसके अंदर 9,000 कॉस्ट भी है। तो 9,000 जो हमारे पास कॉस्ट आ रही है, इट्स प्योरली कॉस्ट अकाउंटिंग, कि हमने कौन कौन से आइटम्स को जो है, कौन कौन सी कॉस्ट को जो है इसके अंदर ऐड करना है कि हम वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल सके। अब मैं 9,000 का आपको क्या ब्रेकअप दूं कि इसके अंदर कौन कौन सी कॉस्ट आ रही है, मैं यूटिलिटीज ऐड करूं, मैं क्या चीजें ऐड करूं। तो ये इट्स प्योरली कॉस्ट अकाउंटिंग क्वेश्चन कि हमने क्या क्या आइटम, जो भी कॉस्टिंग जिस अंदाज में होती है उसी अंदाज में कहीं कॉस्टिंग की गई होगी और उससे जो वैल्यू निकाल ली होगी वो 9,000 आ गई होगी, चाहे वो जो भी कॉस्ट हो हमारी। उस कॉस्ट को डेफिनेटली उसने परचेज कॉस्ट में ऐड करना है, उसके बाद अपना मार्जिन ऐड करना है और फिर ही बेचना है। ऑल राइट अली इखलाक, मैं एक एग्जांपल विदहोल्डिंग के साथ भी करूंगा, लेकिन पहले हम विदहोल्डिंग टैक्स को कॉन्सेप्ट को पहले समझ लें, उसके बाद। मोहम्मद दानिश साहब कहते हैं सेल्स टैक्स और वैट में क्या फर्क है। देखिए, सेल्स टैक्स जो है, अगर मैं सेल्स टैक्स के वर्ड पे जाऊं तो सेल्स टैक्स किस चीज को कहते हैं? एट द टाइम ऑफ सेल हम जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जिस टाइम सेल्स टैक्स आया था उस टाइम सिर्फ ये कुछ लोगों के ऊपर लगाया गया था, डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर जब भी सेल करता था अनलाइसेंस ट्रेडर को, तो उस टाइम उनसे टैक्स कलेक्ट कर लेता था। दैट्स व्हाई एट दैट टाइम इसको हम सेल्स टैक्स कहते थे। लेकिन जब सेल्स टैक्स एक्ट 1990 आया तो इसने जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया वो वैल्यू एडिशन टैक्स का कॉन्सेप्ट था, कि हर जो है हमारे पास जितना भी सप्लाई चेन के अंदर जितनी दफा ये सेल हो रही है, हर स्टेज पे हमें थोड़ा थोड़ा टैक्स उठा के गवर्नमेंट को पे करते रहना है। तो अब नाम तो सेल्स टैक्स ही रह गया, लेकिन जो हम प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं वो वैल्यू एडिशन टैक्स का फॉलो कर रहे हैं। तो मैंने ये नहीं कहा कि दोनों वर्ड्स बिल्कुल सेम है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि सेल्स टैक्स सिर्फ नाम रह गया है, लेकिन इसके बिहाइंड जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रिंसिपल है, जो बुनियाद है, वो अभी भी वैल्यू एडिशन टैक्स की ही है। ओके इफ्तिखार साहब, आप पूछ रहे हैं अगेन अनरजिस्टर्ड के साथ क्या होगा, तो मैं अनरजिस्टर्ड के ऊपर आऊंगा आफ्टर सेक्शन 3। आई थिंक वी आर क्लियर रिगार्डिंग दिस एग्जांपल। ये एग्जांपल आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगी, ठीक है। अल्टीमेटली गवर्नमेंट को 4182 ही गए हैं, ठीक है। इसके बाद मैं अपनी डेफिनेशंस पे दोबारा आ जाता हूं। अब्दुल जब्बार साहब पूछ रहे हैं कि सेल्स टैक्स किस टाइम पे होता है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट रिसीव और द टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम के ऊपर मैंने बात की थी कि अगर विच एवर इज अर्लियर, अगर सेल पहले है पेमेंट बाद में है, तो एट द टाइम ऑफ सेल आपने सेल्स टैक्स पे करना है। अगर पेमेंट पहले रिसीव हो जाती है एडवांस में और सेल बाद में हो रही है, तो आपने एडवांस के ऊपर ही सेल्स टैक्स पे कर देना है। ऑल राइट, जीरो रेटेड सप्लाई के ऊपर आ जाते हैं। ये डेफिनेशन की लास्ट हमारे पास डेफिनेशन है। जीरो रेट सप्लाई सेक्शन 4 के अंदर हर वो गुड जिसके ऊपर 0% सेल्स टैक्स चार्ज होता है, ठीक है, उस गुड्स को हम क्या कहते हैं, कि वो सप्लाई को हम क्या कहते हैं, जीरो रेटेड सप्लाई। लॉ में 3 तरह की सप्लाई आपको नजर आएंगी, एक टैक्सेबल सप्लाई है, एक एग्जेम्प्ट सप्लाई है और एक जीरो रेटेड सप्लाई है, ठीक है। अक्सर क्वेश्चंस ये पूछा जाता है कि अगर एग्जेम्प्ट सप्लाई के ऊपर भी टैक्स नहीं है, जीरो रेटेड सप्लाई के ऊपर 0% टैक्स है, तो फिर हमने ये क्यों इनको दो क्लासिफिकेशन दी हुई है, इन दोनों के अंदर फर्क है, ठीक है। ये फर्क मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये क्वेश्चंस आने से पहले मैंने बता दिया कि इस फर्क को मैं एक्सप्लेन करूंगा एक टेबल के जरिए, लेकिन जब मैं उस शेड्यूल की तरफ जाऊंगा तब। ऑल राइट, सेक्शन 3 पे आ जाते हैं। सेक्शन 3 इज अ चार्जिंग सेक्शन, ठीक है। ये चार्जिंग सेक्शन है हमारा, ठीक है। ये हमें बताता है कि जी एवरी गुड इज अ टैक्सेबल गुड, ठीक है। किस अंदाज में, ये भी बता दिया इसने, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर रहते हुए देयर शैल बी चार्ज्ड, लेविड एंड पेड अ सेल्स टैक्स, कि आप लोग चार्ज भी करेंगे, आप लेवी करेंगे और सेल्स टैक्स पे करेंगे
एज सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 17%। किस वैल्यू पे? 7। इसका मतलब स्टैंडर्ड रेट हमारे पास क्या आ रहा है? 17% का आ रहा है। किसके ऊपर? ऑफ द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज made by a registered person in the course or furtherance of any taxable activity carried on by him। ठीक है, किसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज होगा? टैक्सेबल सप्लाईज के ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज होगा। कौन सेल करेगा? रजिस्टर्ड पर्सन सेल करेगा। ठीक है, आप देखिए इसमें सारे कॉन्सेप्ट जो हम ऊपर करके आए कि जी टैक्सेबल सप्लाई के ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज होना है। टैक्सेबल सप्लाई क्या है? सेक्शन 13 के अलावा जितने भी गुड्स की सप्लाई है वो सेक्शन टैक्सेबल सप्लाई है। कौन चार्ज करेगा? रजिस्टर्ड पर्सन। जब मैं आउटपुट टैक्स का बता रहा था तो उस टाइम मैंने कहा था कि सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन चार्ज कर सकता है। कब करेगा? जब टैक्सेबल एक्टिविटी होगी। अगर टैक्सेबल इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, टैक्सेबल गुड्स उस इकोनॉमिक एक्टिविटी में सप्लाई हो रही हैं, अगर ये चीजें सारी की सारी पूरी होती हैं तो इसका मतलब है उस आइटम के ऊपर 17% सेल्स टैक्स चार्ज किया जाएगा। दूसरा पॉइंट, गुड्स इंपोर्टेड इनटू पाकिस्तान। जब भी गुड्स इंपोर्ट किए जाएंगे पाकिस्तान में तो उस इंपोर्ट कस्टम अथॉरिटीज इंपोर्ट करते हुए, ठीक है, उस आइटम के ऊपर सेल्स टैक्स आपसे कलेक्ट करेंगी। अच्छा, ये जो एक पॉइंट है ये नए न्यू ऐड किया गया कि इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फाइनल डेस्टिनेशन इन टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान। अक्सर होता था कि लोग कहते हैं कि जी हम तो फाटा से बिलोंग करते हैं, वहां पे सेल्स टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, तो काइंडली हमारी इंपोर्ट के ऊपर सेल्स टैक्स नहीं होना चाहिए। लॉ ने इस एम्बिग्विटी को खत्म कर दिया। उसने कहा जो भी फाइनल डेस्टिनेशन है, हमारा फाइनल डेस्टिनेशन से कोई कंसर्न नहीं है, पाकिस्तान में आइटम आ गया, इसका मतलब है उसके ऊपर सेल्स टैक्स पे करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फाइनल डेस्टिनेशन। वसीम रहमान साहब, मैंने आपको ये कहा था कि मैन्युफैक्चर उन, आप पूछ रहे हैं कि जी क्वेश्चन वसीम रहमान साहब का मैं बताता जाऊं। वो पूछ रहे हैं कि जी आपने कहा था कि मैन्युफैक्चर रिटेल प्राइस के ऊपर सेल्स टैक्स पे करेगा, और अब आप कह रहे हैं कि नहीं जी नॉर्मल प्राइस। मैंने ये कहा था कि अगर मैन्युफैक्चर थर्ड शेड्यूल आइटम सेल कर रहा है, डेली यूज की आइटम जो थर्ड शेड्यूल के अंदर मेंशन है, अगर उन आइटम्स को सेल कर रहा है तो फिर ट्रीटमेंट डिफरेंट होगी। उस ट्रीटमेंट को भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा एक इलस्ट्रेशन के थ्रू। लेकिन यहाँ पर मैंने ये अज्यूम नहीं किया कि थर्ड शेड्यूल आइटम है, मैं नॉर्मल सेल की बात कर रहा हूँ, एक नॉर्मल आइटम है। ठीक है, आई होप कि आपकी कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो गई होगी। ऑलराइट, फिर मजीद आगे स्कोप बताता है कि सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 8 और एनी नोटिफिकेशन इश्यूड देयरअंडर where taxable supplies are made to a person who has not obtained registration number, there shall be charged, levied and paid a further tax at the rate of 2% of the value। इसका मतलब क्या हुआ? ये सजा है, ठीक है, कि अगर मैं रजिस्टर्ड हूं और मैं किसी ऐसे बंदे को सेल कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैं होलसेलर को सेल कर रहा हूं, वो होलसेलर लायबल टू बी रजिस्टर्ड है, उसको चाहिए कि रजिस्ट्रेशन करवाए लेकिन वो अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता, तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं 17% तो चार्ज करूंगा उसको, लेकिन सजा के तौर पे मैं उसके ऊपर फर्दर टैक्स चार्ज करूंगा 2%। और फर्दर टैक्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं मिलती, ये सिर्फ कलेक्ट किया जाता है और गवर्नमेंट को पे कर दिया जाता है, क्योंकि ये एक पेनल्टी होती है जो कि अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल से कलेक्ट की जाती है। ठीक है, उसको सजा के तौर पे कलेक्ट किया जाता है कि जी आपको रजिस्टर होना चाहिए, नहीं रजिस्टर होते, ठीक है 17% तो पे करो लेकिन 2% एक्स्ट्रा पे करो, और वो 2% कलेक्ट करके जो है वो गवर्नमेंट अथॉरिटी को डिपॉजिट कर दिए जाते हैं। ठीक हो गया? तो लॉ ये कहता है कि अगर जो है 17% चार्ज करना है, किसमें चार्ज करना है? अगर रजिस्टर्ड इंडिविजुअल है। लेकिन अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन को आप सेल कर रहे हैं तो उसमें 17 के साथ आपने 2% मजीद फर्दर टैक्स भी चार्ज करना है। ठीक है, और जब फर्दर टैक्स आप चार्ज करेंगे वो उसे कलेक्ट करके उसी अंदाज में डिपॉजिट कर लेना है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं, एक एसआरओ है 648, मैंने नोट्स में मेंशन कर दिया, एसआरओ की डेट भी मेंशन कर दी, नंबर भी आपको एफबीआर की वेबसाइट पे मिल जाएगा। इस एसआरओ में लिखा है कि किन लोगों के ऊपर फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होना, किन लोगों के ऊपर, ऑल दो वो लोग अनरजिस्टर्ड हों भी, तब भी आप लोगों ने इन लोगों के ऊपर फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करना। कौन? सप्लाई ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू एंड कंज्यूमर। अगर एंड कंज्यूमर है, डायरेक्टली जो है मुझे सेल हो रही है, मैं एंड कंज्यूमर हूं, तो मेरे ऊपर फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा, क्योंकि मैं इंडिविजुअल हूं। और इंडिविजुअल को अब ये तो नहीं हो सकता कि मैं इंडिविजुअल हूं और मैं अपने आप को सेल्स टैक्स एक्ट में रजिस्टर करवाऊं। क्यों? क्योंकि मैं कोई टैक्सेबल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा, मैं तो उस आइटम को यूज कर रहा हूं। तो अगर एंड कंज्यूमर को सेल होगी और एंड कंज्यूमर अनरजिस्टर्ड भी हुआ, तब भी उसके ऊपर फर्दर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, थर्ड शेड्यूल आइटम्स के ऊपर फर्दर टैक्स चार्ज नहीं किया जाता, चाहे वो किसी को भी सेल हो, चाहे वो रजिस्टर्ड को हो, चाहे वो अनरजिस्टर्ड को हो। डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर कंज्यूमर को जब बिजली सप्लाई की जाएगी, ठीक है, तो उनके ऊपर भी उस बिजली की वैल्यू के ऊपर भी फर्दर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। नेचुरल गैस अगर डोमेस्टिक कंज्यूमर को या सीएनजी स्टेशन को सप्लाई की जाएगी, उस नेचुरल गैस के ऊपर भी फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा।
सेकंड हैंड वोन क्लॉथिंग या वोन आर्टिकल्स की सप्लाई के ऊपर भी फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा। जीरो रेटिंग गुड्स जो हैं उनके ऊपर भी जो है फर्दर टैक्स अप्लाई नहीं होगा। फर्टिलाइजर सप्लाईज बाय स्टील मेल्टर्स, री रोलर्स एंड शिप ब्रेकर्स, अगर हम इसकी भी सेल करेंगे तो इसके ऊपर भी फर्दर टैक्स अप्लाई नहीं होगा। Further tax shall not become part of output tax, which means that further tax is payable to the FBR as a bottom line figure। बिल्कुल further tax की input output tax adjustment कोई नहीं होती, ये collect किया जाता है और directly government को pay कर लिया जाता है। ठीक है, इसमें मैं questions देख लेता हूँ थोड़े से। अच्छा, राशिद हनीफ साहब पूछ रहे हैं कि why I collect that 2%, why not government directly? अच्छा, गवर्नमेंट डायरेक्टली, देखो डायरेक्टली टैक्स तो कोई भी पे नहीं करता। ठीक है, अगर मुझसे डायरेक्टली टैक्स वसूल, अगर हम विदहोल्डिंग टैक्स का कॉन्सेप्ट खत्म कर देना और मुझे कहा जाए कि टैक्स पे करो, देन आई विल फाइंड अ वे किसी तरीके से टैक्स अवॉइड करूं। ठीक है, दूसरी बात है कि गवर्नमेंट डायरेक्टली, गवर्नमेंट को कैसे पता लगेगा कि ये बंदा अनरजिस्टर्ड है, इसने टैक्स कब पे करना है, उस तक कैसे पहुंचा जाएगा। ठीक है, आई थिंक इस एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टी को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी गई, उसको विदहोल्डिंग एजेंट बना दिया गया कि जी ये काम तुमने करना है। अगर तुम अनरजिस्टर्ड को बेच रहे हो तो तुमने ही उससे 2% कलेक्ट करके डिपॉजिट करने हैं। ठीक हो गया, तो गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं कलेक्ट कर सकती उनसे, इट्स इम्पॉसिबल, ये एडमिनिस्ट्रेटिवली पॉसिबल नहीं है। एक बंदा रजिस्टर्ड ही नहीं है, उससे कैसे कलेक्शन की जाएगी। रजिस्टर्ड पर्सन और एक्टिव टैक्स पेयर में फर्क पूछ रहे हैं अब्दुल जब्बार साहब। रजिस्टर्ड पर्सन कौन होता है? जो अपने आप को एफबीआर में रजिस्टर कर ले। एक्टिव कौन होता है? जो अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, विदहोल्डिंग स्टेटमेंट भी फाइल करता हो। ठीक हो गया, सिर्फ इनरोल कर देना, इनरोल कर देने से कोई भी पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन बन जाता है। लेकिन अगर एनरोलमेंट के बाद लॉ की एप्लीकेशन नहीं हो रही है, लॉ के प्रोसीजर्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो इसके बाद जो है वो इनएक्टिव। तो एक्टिव टैक्स पेयर इट डिपेंड्स ऑन कि लॉ ने जो काम करने के लिए बताए हैं वो किए जा रहे हैं कि नहीं। सेल्स टैक्स रिटर्न, ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न, विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल हो रही है। अगर हो रही है तो वही रजिस्टर्ड पर्सन एक्टिव रहेगा। लेकिन अगर ये काम नहीं हो रहे तो वो रजिस्टर्ड पर्सन तो होगा लेकिन इनएक्टिव हो जाएगा। यस मोहम्मद दानिश साहब, 17% भी चार्ज करेगा और उसके बाद उसी वैल्यू के ऊपर 2% ऐड होगा। 17% एक्सक्लूड करके 17% ऐड करके 2% नहीं चार्ज होगा, वैल्यू के ऊपर ही होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई जो हम पढ़ के आए थे। अगर रजिस्टर्ड पर्सन एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है तो हम फिर देखेंगे कि आगे उनके साथ क्या क्या होना है। वो सस्पेंड भी हो जाएंगे, वो ब्लैक लिस्ट भी हो जाएंगे और बहुत से जो लॉ के बेनिफिट उसको मिल रहे थे वो मिलना बंद हो जाएंगे। अच्छा, शुमाइल साहब का क्वेश्चन है कि जी कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द फर्स्ट पॉइंट, सप्लाई ऑफ गुड्स डायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब है कि डायरेक्टली एंड कंज्यूमर को अगर बिक रहा है, डायरेक्टली एंड कंज्यूमर। आई थिंक आपका यही, प्लीज अपना क्वेश्चन थोड़ा सा इलैबोरेट करें। होपफुली आप ये एंड कंज्यूमर वाला पूछ रहे हैं, दिस व्हाट आई अंडरस्टैंड। नाशिद हनीफ साहब, ये अलग बहस है कि गवर्नमेंट का अगर हम देखें तो चेक एंड बैलेंस जिस तरह से है उस चीज पे हम ना ही बात करें तो बेहतर है यहाँ पर। ठीक हो गया कि वो चेक एंड बैलेंस क्या है, किस तरीके से है और किस तरीके से नहीं है, लेकिन दे आर ट्राइंग टू गेटिंग बेटर। अदनान खान साहब कहते हैं कि विदहोल्डिंग स्टेटमेंट सिर्फ विदहोल्डिंग एजेंट ने फाइल करनी है। जी डेफिनेटली। अमार सिद्दीकी साहब, मैं बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा जीरो और एग्जाम ट्रेटेड वाला, मैं बिल्कुल करूंगा। ठीक है, आज नहीं तो अगले वेबिनार में मैं इस चीज को बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये पॉइंट है जरूरी और ये मैंने एक्सप्लेन करना है।
मोहम्मद ताहिर अयूब साहब बिल्कुल 17% एडजस्टेबल एंड 2% वोंट बी एडजस्टेबल। नहीं, 19% सारा का सारा नहीं, सिर्फ 2% नॉन एडजस्टेबल है। अच्छा, अब्दुल जब्बार जफर साहब कहते हैं बायर इज रजिस्टर्ड बट नॉट एक्टिव, देन सेलर चार्ज फर्दर टैक्स। नहीं, फिर नहीं चार्ज करना, लेकिन नॉन एक्टिव होने की वजह से नहीं, ठीक है, चार्ज होगा। ये सिर्फ आप लोगों ने अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर को देखना है। अच्छा, आबिद अशरफ अली साहब कहते हैं कि क्या जस्ट लाइक अ कंपनी कैन गेट एग्जेम्पशन फ्रॉम विदहोल्डिंग टैक्स फॉर अ पीरियड, कैन सेल्स टैक्स बी एग्जेम्प्टेड? नहीं, विदहोल्डिंग टैक्स से आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। अगर लॉ ने खुद एग्जेम्प्ट किया हुआ है जिन लोगों को, सिर्फ वो लोग माफ है, इसके अलावा नहीं है। ठीक है, मैं आपको विदहोल्डिंग का भी बता दूं कि रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड पर्सन कोई विदहोल्डिंग नहीं होती, वो कानून खत्म हो चुका है। 1 जुलाई से वो चीज चेंज हो चुकी है। अगर एक बंदा रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड बंदे को सेल कर रहा है, तो फिर जो है कोई विदहोल्डिंग मुझसे नहीं होनी है। अगर मैं अनरजिस्टर्ड को सेल करता हूँ, या मैं अनरजिस्टर्ड से परचेज करता हूँ, सॉरी, अगर मैं अनरजिस्टर्ड से परचेज करता हूँ, तो तब जो है मेरे ऊपर ये लाजमी है कि मैंने उस अनरजिस्टर्ड से परचेज कर लिया है, और अब पेमेंट करते हुए मुझे विदहोल्डिंग करनी है। रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड वाला जो लॉ है वो खत्म हो चुका है। आबिद अशरफ अली साहब कहते हैं, एनी टाइम लिमिट फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस एट विच सेल्स टैक्स कैन बी क्लेम्ड? जी, 6 मंथ्स है, 6 मंथ्स में आप क्लेम कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला नईम साहब कहते हैं, व्हाई कॉटेज इंडस्ट्रीज चार्ज सेल्स टैक्स व्हेन दे आर नॉट लायबल टू गेट रजिस्टर्ड? देखिए, कॉटेज इंडस्ट्री तो सेल्स टैक्स नहीं चार्ज करेगी, कॉटेज इंडस्ट्री एग्जेम्प्ट है, उसने सेल्स टैक्स नहीं चार्ज करना। मैंने ये बात बताई है कि कॉटेज इंडस्ट्री ने सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करना। जी आबिद अशरफ साहब, बिल्कुल दूसरे रेट्स हैं 17% के अलावा। अच्छा, वलीद भट्ट साहब का क्वेश्चन है, व्हाई इफ अनरजिस्टर्ड रिटेलर एक्ट्स लाइक एंड कंज्यूमर टू अवॉइड फर्दर टैक्स? अगर रिटेलर एंड कंज्यूमर के तौर पे एक्ट करेगा, तो यहाँ पर एक नुकसान मैं आपको उसको भी बता, जो उसको होगा वो भी मैं बताता जाऊं, कि वो इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं ले सकेगा। ठीक है, और जब इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं ले सकेगा, तो फिर डेफिनेटली जब वो आगे सेल करेगा, ठीक है, तो उसको जो है वो आइटम कॉस्टली सेल करना पड़ेगा, और उससे उसकी मार्केट भी खराब हो जाएगी। अच्छा, राशिद अजीब साहब कहते हैं, if I am selling goods after manufacturing, अगर मैन्युफैक्चरिंग के बाद सेल कर रहे हैं, what would be the input tax for me and what would be the value of the item? आपके लिए इनपुट टैक्स वो होगा जो आपने रॉ मटेरियल के ऊपर पे किया है। रॉ मटेरियल के ऊपर जितना आपने इनपुट टैक्स पे किया होगा, वो इनपुट टैक्स होगा, और उसके बाद आप जब आइटम मैन्युफैक्चर कर लेते हैं, ठीक हो गया, उसके ऊपर जो सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे वो आउटपुट टैक्स होगा। आई थिंक वो इलस्ट्रेशन में हमने इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर लिया था। अदनान खान साहब, मैं विदहोल्डिंग टैक्स पे आऊंगा, विदहोल्डिंग रूल्स पे आऊंगा, तो मैं विदहोल्डिंग के रूल्स एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। अब्दुल जब्बार साहब, मैं सिर्फ गुड्स की बात कर रहा हूँ, रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, नो विदहोल्डिंग टैक्स फॉर ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स ओनली। सर्विसेज के ऊपर ऐसा नहीं है, सर्विस में कुछ चीजें अलग है। टू परसेंट अब्दुल अब्दुल साहब, आप कह रहे हैं 2% एडिशनल सेल्स टैक्स है, जो 2% फर्दर सेल्स टैक्स है ना, ठीक है ना, ये एडजस्टेबल नहीं होगा, ये आपने पे करना है गवर्नमेंट को। और ये इंपोर्ट के टाइम, आप इंपोर्ट जब आप करते हैं, आप ऑलरेडी रजिस्टर होते हैं, तो इंपोर्ट के वक्त तो आपसे फर्दर टैक्स नहीं कटता, एडिशनल टैक्स की आप एडजस्टमेंट ले सकते हैं।
मोहम्मद जवाद मोहम्मद याकूब साहब, इनका क्वेश्चन है कि आर एज यू टोल्ड a while ago that withholding will not be applicable from July onward, can you please elaborate the same? withholding सिर्फ registered to registered person apply नहीं होगी, ठीक है। ये एक SRO जो है मैं नेक्स्ट वेबिनार पे अपलोड भी कर लूंगा, यहाँ पे वो SRO आया है जिसने इस चीज को खत्म कर दिया है, और इसको इलेबोरेट कब करना है ये हम विथहोल्डिंग के रूल्स में देखेंगे। सैयद नाजिम अब्बास साहब, रिटेलर्स को हम अलग से देखेंगे, जब हम रिटेलर्स को देखेंगे आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अदनान खान साहब, इस तरह नहीं है, सिर्फ सेल्स टैक्स की विदहोल्डिंग मना होगी रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, इनकम टैक्स से आप नहीं बच सकते, क्योंकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में को एक्सप्लेन करते हुए मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही। मोहम्मद जिशान शाफी साहब, मैं ड्यू डेट के ऊपर आऊंगा, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। इरफान अली साहब, मैंने आपको कहा मैं नेक्स्ट वेबिनार में एक एसआरओ डाउन आप इधर अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उस एसआरओ में मेंशन है कि रजिस्टर टू रजिस्टर जो है वो विथहोल्डिंग खत्म हो चुकी है। अब्दुल अहद साहब, जब पेनल्टी लेटर मिलेगा तब पेमेंट होगी। मोहम्मद यूसुफ साहब, आप कह रहे हैं कुछ सब सेक्शंस इंक्लूड नहीं किए, मैंने खुद इंक्लूड नहीं किए क्योंकि उन सब सेक्शंस का समझना जरूरी नहीं है, ठीक हो गया। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड सेल्स टैक्स फुली, वो मैंने सारी चीजें इंक्लूड कर ली है। इसीलिए मैंने नोट्स बनाए हैं कि अगर मैं फुली ऑर्डिनेंस पे आ जाता तो ये आप लोगों के लिए अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल हो जाता। सबसे पहले हमें बेसिक समझनी है, जब आप ये चीजें अंडरस्टैंड कर लेंगे उसके बाद आप सेल्स टैक्स एक्ट पढ़ेंगे, आपको समझ आती रहेंगी चीजें। ओके, थर्ड शेड्यूल आइटम के ऊपर हम आ जाते हैं। थर्ड शेड्यूल आइटम सेक्शन 3(2)(a), ठीक है। इसका मैंने आपको बता दिया था कि थर्ड शेड्यूल आइटम के ऊपर जो है वो रिटेल प्राइस के ऊपर कलेक्शन होती है, ठीक है। सेल्स टैक्स इज चार्ज बाय अ मैन्युफैक्चरर at 17% in respect of goods falling under this category on the recommended retail price which shall be legibly printed on the label, ठीक है। जब आप थर्ड शेड्यूल आइटम होते हैं डेली यूज के, और वो जो है ना पैक्ड आइटम होते हैं, और पैक्ड आइटम्स के ऊपर उनकी प्राइस भी लिखी होती है कि जी ये रिटेल प्राइस है, ये सेल्स टैक्स है। तो उस पैकेट के ऊपर जो भी सेल्स टैक्स होता है मैन्युफैक्चरर्स को फर्स्ट स्टेज पर ही कलेक्ट कर लेता है सारा का सारा, और वो लेजिबली क्लियरली जो है वो प्रिंट होता है लेबल के ऊपर along with amount of sales tax, ठीक हो गया। After charging such sales tax by the manufacturer, the same amount of sales tax will be charged by the wholesaler of finished goods and the retailer from there. तो अगर आप देखिए जो फर्स्ट स्टेज पे सेल्स टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है सब वही सेल्स टैक्स चार्ज कर रहे हैं और एडजस्टमेंट ले रहे हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पर आ जाऊं, इस एग्जांपल को अगर मैं करूं तो इम्पोर्ट फॉर एग्जांपल होलसेलर है, ठीक है, या मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर ने अगर चार्ज किया 4182, देखो उसको चार्ज करने चाहिए थे 4012, लेकिन वो कौन से चार्ज करेगा, वो चार्ज करेगा जो लास्ट में सेल्स टैक्स कंज्यूमर ने पे करना है, 4182। स्टार्ट में इसने 4182 चार्ज कर लिया, ठीक है। होलसेलर कितने का खरीदेगा, जब होलसेलर आइटम परचेज करेगा तो वो कितना इनपुट पे करेगा 4182, और वो अगेन रिटेलर को कितना चार्ज करेगा 4182। तो अगर हम देखें तो पूरी की पूरी जो पूरा का पूरी जो चेन है वो किस पे चल रही है, उस सेल्स टैक्स के ऊपर चल रही है जो कि स्टार्ट में मैन्युफैक्चरर चार्ज कर चुका है किस प्राइस पे, रिटेल प्राइस पे। तो यहां पर अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर मैं इसको इस अंदाज में देखूं कि मैन्युफैक्चरर जो है वो 4182 चार्ज कर रहा है, ठीक है। कितने चार्ज कर रहा है, 4182 चार्ज कर रहा है। तो इसका मतलब है कि 4182 वो जितने भी कलेक्ट कर रहा है वो सारे के सारे उठा के किसको पे कर देगा, गवर्नमेंट को पे कर देगा। फिर हर स्टेज के ऊपर 4182 ही चार्ज होता रहेगा कंटिन्यूसली, क्योंकि लास्ट के स्टेज का सेल्स टैक्स फर्स्ट स्टेज पे ऑलरेडी पे ऑफ हो चुका है।
ऑल राइट, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया कि जी थर्ड शेड्यूल आइटम्स के साथ क्या होगा। थर्ड शेड्यूल आइटम्स के साथ जो मैन्युफैक्चरर है वो फर्स्ट स्टेज के ऊपर ही रिटेल प्राइस का सेल्स टैक्स पहले स्टेज पे पे करते रहेंगे, और फिर अगली सप्लाई चेन के अंदर सारे जो है वही सेल्स टैक्स दूसरे से कलेक्ट कर करके अपने लिए एडजस्टमेंट्स करते रहेंगे सर। ठीक है, पेमेंट पहले स्टेज पे हो चुकी है, अब सिर्फ एडजस्टमेंट्स होती रहेंगी। ठीक है, देखो थर्ड शेड्यूल के अंदर जो आइटम्स इंपोर्टेंट आइटम्स कवर होते हैं वो मैंने यहाँ पर लिख भी दिए हैं। ठीक है, सिगरेट्स आ गया, वेजिटेबल जूसेस, फ्रूट जूसेस, आइसक्रीम, सिरप, सिरेटेड वाटर, bottled water, detergents, shampoo, tea, power drinks, toilet paper. Okay. Spices sold in a retail packaging with brand name, cement, fertilizers, ये सारी वो चीजें तो थर्ड शेड्यूल, अगर आप थर्ड शेड्यूल खुद भी ओपन कर लेंगे आपको आइटम नजर आ जाएंगे। ठीक है, नोट्स आ गया, थर्ड शेड्यूल कॉन्सेप्ट इज ओनली एप्लीकेबल ओनली फॉर मैन्युफैक्चरर, याद रखना सिर्फ मैन्युफैक्चरर के ऊपर है। अगर इंपोर्टर जो है उसने नॉर्मल मैनर में एडजस्टमेंट करनी है सारी की सारी। ये ना हो कि अगर इंपोर्टर थर्ड शेड्यूल आइटम जो है वो इंपोर्ट कर रहा है तो आप कहेंगे कि नहीं इसने भी वही जो है वो कंज्यूमर के ऊपर जो प्राइस है, रिटेल प्राइस है, उसके ऊपर चार्ज करना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, सिर्फ थर्ड शेड्यूल आइटम का कॉन्सेप्ट मैन्युफैक्चरर के लिए एप्लीकेबल है। अगर इंपोर्टर थर्ड शेड्यूल आइटम पर इंपोर्ट करके सेल करता है तो उसने नॉर्मल रूल जो है नॉर्मल वैल्यू एडिशन की एडजस्टमेंट को फॉलो करना है। और दूसरा पॉइंट कि फर्दर टैक्स जो है वो थर्ड शेड्यूल आइटम के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, चाहे आप जिसको भी सेल करें। नहीं सुमैया, आपका क्वेश्चन है, सो दिस मीन इफ वी आर सप्लाइंग गुड्स टू समवन वी नीड टू इंश्योर दैट वेदर दिस बायर इज मैन्युफैक्चरिंग इट और बीइंग एन एंड कंज्यूमर। देखिए ये जो फर्दर टैक्स वाला, ये जो थर्ड शेड्यूल वाला कॉन्सेप्ट है, ये मैन्युफैक्चरर ने ही करना है। ठीक है, आप अगर मैन्युफैक्चरर को सेल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप इस चीज को भूल जाए कि आपने जो है वो थर्ड शेड्यूल आइटम्स की स्पेशल ट्रीटमेंट लेनी है। थर्ड शेड्यूल आइटम की स्पेशल ट्रीटमेंट सिर्फ मैन्युफैक्चरर ने लेनी है, तो मैन्युफैक्चरर से ही ये पॉइंट रेज होगा, वहीं से ये पॉइंट स्टार्ट होगा। उससे पहले वाले बिल्कुल नॉर्मल चीजें, मैन्युफैक्चरर ने अगर थर्ड शेड्यूल आइटम परचेज सेल किया है तो वो परचेज तो थर्ड शेड्यूल आइटम नहीं करेगा, वो परचेज तो कोई नॉर्मल आइटम कर रहा है, कोई रॉ मटेरियल कर रहा है, उस रॉ मटेरियल के साथ नॉर्मल ट्रीटमेंट की जाएगी। खाली उस जब वो सेल कर रहा है तो उस टाइम थर्ड शेड्यूल आइटम होगा। तो मैन्युफैक्चरर ने खुद अपने साथ डिसाइड करना है वेदर आई एम सेलिंग अ थर्ड शेड्यूल आइटम और अ नॉर्मल आइटम। अगर शेड्यूल ओमिट हो गया है राशिद साहब, इसका मतलब इट इज नो मोर एप्लीकेबल। अच्छा, मैं थर्ड शेड्यूल के आइटम की इलस्ट्रेशन के साथ और फर्दर टेक्स्ट की इलस्ट्रेशन नेक्स्ट वेबिनार में फर्स्ट थिंग हम यही करेंगे कि आते साथ एक एग्जांपल करें जिसके अंदर ये दोनों कॉन्सेप्ट इलेबोरेटली हम एक्सप्लेन कर लें ताकि ये सारी क्वेरीज जो है वो खत्म हो जाए। अच्छा, ताहिर साहब पूछ रहे हैं कि किस तरीके से हम रिटेल प्राइस डिटरमिन करेंगे। रिटेल प्राइस ऐसे कि उस तरह के आइटम मार्केट में और भी बिक रहे हैं, सेल हो रहे हैं, तो जो उनकी प्राइस है वही प्राइस जो है वो गवर्नमेंट ने डिटरमिन करनी होती है कि कौन सी प्राइस पे इस आइटम ने सेल होना है। ठीक है ना, जो आइटम की प्राइस होगी मार्केट में उसी प्राइस को इसने भी जो है वो प्रिंट करना है, या अगर इसकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो फिर एक्चुअल प्राइस जो भी है अगर वो नॉर्मल से ज्यादा है तो वो हमने प्रिंट करनी है। बिल्कुल बाकिर साहब, अगर आप मैन्युफैक्चरर है और थर्ड शेड्यूल आइटम सेल कर रहे हैं और इंपोर्ट करके अदर आइटम सेल कर रहे हैं तो वर्किंग आपको अलग अलग करनी पड़ेगी। ओके राशिद साहब, मैं आपको जो है सबको जो है वो सेल्स टैक्स एक्ट 1990 जो लेटेस्ट है वो सेंड करवा दूंगा। आई थिंक यहाँ पर हम अपना सेशन जो है वो क्या कहते हैं क्लोजिंग की तरफ जाते हैं, वाइंड अप करते हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं बहुत इन डेप्थ क्वेश्चंस जो है वो मैंने देखे हैं, आए हैं, बहुत डिटेल्ड आए हैं। ठीक है, कुछ को मैंने आंसर कोशिश की है कि मैं सबको आंसर करूं लेकिन क्वेश्चंस बहुत स्पीड में आ रहे हैं। ठीक हो गया, मैंने तो कोशिश की है सबको आंसर करूं लेकिन जो स्पेसिफिकली आपके बिजनेसेस से रिलेटेड है, ठीक है, या किसी स्पेसिफिकली सिनेरियो से रिलेटेड है, मैं वो यहाँ पर आंसर नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हमने सेल्स टैक्स एक्ट को पहले कवर करना है, उसके बाद ये सारी चीजें खुद भी कवर हो जाएंगी। ठीक है, जस्ट गिव इट सम टाइम। आप ये सारा का सारा एक्ट जो है मेरे साथ स्टडी करें, उसके बाद कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो सारे रिजॉल्व हम कर लेंगे। और अगर फिर भी कोई ऐसी चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और रह गई हो तो आप लोगों के पास मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है, ठीक है, मेरा ईमेल एड्रेस है, आप उस पर मुझे ईमेल करें अपनी क्वेरी। मुझे ईमेल्स आई हैं बहुत सारे मेंबर्स की और मैंने कोशिश की है कि मैं उसको रिप्लाई करूं। ठीक है,
कभी कभी जो है 1 वीक बाद मैंने रिप्लाई किया है, लेकिन मैंने जो है ईमेल का रेस्पॉन्स दिया है। ठीक है, कभी कभी मैं बहुत ऑक्यूपाइड होता हूँ, नहीं दे पाता, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं उसको रिप्लाई करूं। और टेक्स्ट भी आए हैं, व्हाट्सएप भी आया है, उसको भी मैंने जो है वो रिप्लाई करने की कोशिश की है जहां तक मेरे लिए पॉसिबल रहा है। तो आप जो है वो मुझे कांटेक्ट के थ्रू कर सकते हैं अप्रोच, टेक्स्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर इन चीज़ों को हम रिजॉल्व करेंगे। मेरा ईमेल एड्रेस मैं आप लोगों को फिर से बताता जाऊं। ठीक है, आप लोग नोट कर लें, yaver@rafaqatbabar.com। ठीक है, और कांटेक्ट नंबर 033393345516। ठीक हो गया, तो आप लोगों की जो भी क्वेरीज हैं आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। और इस सेशन को हम क्लोज कर रहे हैं। होपफुली जो चीज़ें हमने अभी तक समझी हैं इन 2 आवर्स में, वो आप लोग इसको समझ चुके होंगे, और होपफुली आप इसको दोबारा से एक दफ़ा नोट्स को रीड कर लें, तो जो आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं वो चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है, इसको जो है ऑल राइट, अब हमें क्लोज करना है। थैंक यू सो मच। कर दो।